लग रहा है मैं पुराना लाइब्रेरी। A very good morning to all of you. I, on behalf of the Govind Singh College of Pharmacy, welcome you all for the one-day national seminar, which is held with the theme Intellectual Property Rights in Science and Technology. It is our privilege to welcome our guest who has come to grace the occasion. So today we are honored to have with us Dr. Rahul Taneja, scientist GST Haryana, for the first technical session. Please give a big round of applause. I welcome you, sir. I also extend a heartfelt welcome to all the delegates who have come to participate in the seminar from different corners. And before we start with the proceedings of this seminar, I would request all of you to please stand up for the hand. That is Desh Shiva. Please.
Thank you very much, John. Team. Now for the first technical session, I would like to introduce our first speaker of the day, that is Dr. Rahul Taneja. He is working as scientist, Department of Science and Technology, Government of Haryana, Panchkula. He holds various professional degrees, including Doctorate of Philosophy in Pharmaceutical Science, Master of Intellectual Property Law, Master of Pharmacy, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Intellectual Property Rights and Patent Practices, Master Trainer of European Patent Office and World Intellectual Property Organization, and Postgraduate Diploma in Drug Regulatory Affairs and Clinical Trials. As a scientist at the Council for Science and Technology, he facilitates the micro, small, and medium enterprises of Haryana and Chandigarh for IPR-related issues. He is also promoting and facilitating the research scholars and scientists for the protection of intellectual property rights to protect their invention and innovation. He has also his own intellectual property, in which he has 4 copyrights, 2 industrial design, and 3 patents filed in his own credibility. He is also awarded as significant contribution in healthcare by All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I welcome you, sir. I request you, sir, to please take over. Thank you, ma'am. Respected Principal Dr. Kumar Rasar, Professor Ashley Dhunda, faculty members, and dear students. So today is the World Intellectual Property Right Day, and the theme of today World IPR Day is IP and Youth. IPR Youth. अब IPR आप लोगों के लाइफ में एज ए स्टूडेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए डेली रूटीन सब जगह काम आता है. But we have to think about how to implement intellectual property rights in our daily life. Do you have any idea? Currently, do you have any device which is protected by the patent rights? Right now, do you have any device which is protected by the patent? आपके पास अभी कोई ऐसा डिवाइस है जो पेटेंट से प्रोटेक्टेड है? Yes or no? Yes. Yes. आपका सेल फोन which is protected by the पेटेंट राइट्स. अब उस पर कितने टाइप्स के पेटेंट है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क भी है, उसके ऊपर कॉपीराइट्स भी है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल डिजाइन भी. बट वी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ मेनी पेटेंट प्रोटेक्टेड बाय द on cell phone and what is the reason of the protection of the cell phone intellectual assets. So we have to think about the basic fundamental of intellectual property rights. इंटेलेक्चुअल में स्पेशल ऑफ ह्यूमन माइंड प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी होती है राइट्स में इसके ऊपर अधिकार दिया जाता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज. आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, यू हैव सम स्पेसिफिक राइट्स. आप अपनी मर्जी से बेच भी सकते हैं, किराए पे सकते हैं, इवन यू कैन डिस्ट्रॉय इट. यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी. आपके पास लीगल आपके पास पूरे राइट्स है, पूरे राइट्स है. यस और नो? यू कहते हैं यस, रेज योर हैंड. अगर आपके पास पूरे अधिकार है तो आपने प्रिंसिपल रूम के बाहर गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की? You have full rights on your vehicle. तो आप रेड लाइट पे गाड़ी क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते हैं आप? यस, रेगुलेशंस. सरकार आपको किसी भी टेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए एब्सोल्यूट राइट्स नहीं देती, आपको फंडामेंटल राइट्स देती है. We have fundamental rights to use that property, not absolute rights. What is the difference between absolute rights and fundamental rights? मान लीजिए आपने हुड्डा में मकान लिया है, हुड्डा में, तो क्या आप आगे से मकान बना सकते हैं? आपको जगह छोड़नी पड़ती है. This you have to follow the rules of the government of Haryana to manufacture. अगर आप हुड्डा में मकान है तो वहां क्या आप शॉप खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, because you are bound with the rules and regulation. Similarly, we have intangible assets. हमारी सोच और हमारी क्रिएटिविटी वो कुछ भी हो सकती है. Some are scientists, some are painters, some are designers, some are musicians, some are technocrats. कोई पोएम लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डिफरेंट टाइप की पेंटिंग कर रहा है. We can protect every aspects of intellectual property rights, but we have to think about कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं. अब मान लीजिए आपके माइंड में एक आइडिया आया,
आइडिया तो हर एक व्यक्ति के माइंड में डेली आता है, बट आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आपका आइडिया टेंजिबल फॉर्म में है, देन यू कैन प्रोटेक्ट बाय द पेटेंट राइट्स। अगर आपका आइडिया एक्सप्रेशन फॉर्म में है, देन यू कैन प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अगर आपका आइडिया ब्रांडिंग फॉर्म में है, देन यू कैन प्रोटेक्ट बाय द ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो आपको ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। There are several different type of intellectual property rights: patent, trademark, industrial designs, geographical indication, trade secrets, protection of new plant varieties, copyright and related rights। ये सब के सब लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पता होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन पूछो ना पूछो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए किस चीज का पेटेंट होगा, किस चीज का ट्रेडमार्क होगा, किस चीज का कॉपीराइट होगा, किस चीज का डिजाइन होगा। हमारी कंट्री में अब ये थीम है आईपी एंड यूज। हमारी कंट्री के लोगों को पता होना चाहिए कि पेटेंट फाइलिंग कैसे करते हैं। If we can compare with the other countries like China and USA, you have to think about the people are protecting everything। वो सब कुछ बचाते हैं। चाइना में जो पेटेंट फाइल होते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी उतने पेटेंट फाइल होते हैं जितने चाइना में अकेले फाइल होते हैं। So for the better protection, एक अभी आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा था कि मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर, दिस ऑल आर थिंग्स आर कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम आत्मनिर्भर तब तक नहीं बन सकते जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। अब आपने अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, बी फार्मेसी में सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने लॉन्च किया था गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। कि अगर आप कोई कंट्री से इस कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में अपना सामान शेयर आउट करते हैं, तो आपको उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ गैट का, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड सर्विसेज। तो कंट्रीज ने कहा कि दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है, आप इनको एक मिक्स करके एक नया रूल बनाइए जिसमें नाम है ट्रेड रेडिनेस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर रखे गए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड इंडस्ट्रियल। कि अगर हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट कंट्री। मान लीजिए किसी कंट्री ने अपनी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बेची, आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो आपने उसकी आईपी को रिस्पेक्ट नहीं की। दिस इज द रीजन सम कंट्रीज से इंडिया इज एंटी आईपी कंट्री। यहाँ पर सब चीजें कॉपी कर दी जाती है। सो वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दिस बोथ थिंग्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल यूटिलिटी पेटेंट में देने जा रही है, इस साल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि स्मॉल इन्वेंशन के लिए कुछ समय तक के लिए आपको राइट्स मिलेंगे, दैट इज 47 ईयर्स, और वो इन्वेंशन के लिए हो। अदर कंट्रीज में ये रूल्स है, लाइक चाइना में है, अमेरिका में, इंडिया में नहीं था, बट ये अब इस साल ये एक्ट भी पास हो जाएगा, जिसके बाद आप यूटिलिटी पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं। नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या है? 2016 में भारत सरकार ने एक आईपीआर पॉलिसी लॉन्च की, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, अभिनव भारत, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। कि हम अपने कंट्री में आईपीआर को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने आईपीआर पॉलिसी लॉन्च की विद 7 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमंग रिसर्च स्कॉलर्स, डॉक्टर, एमएसएमई, उन सब के द्वारा आप अपनी आईपीआर अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसकी कमर्शियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सब चीजें आईपीआर पॉलिसी के अंदर लिखी गई थी कि हमारी कंट्री में आईपीआर पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाए। पेटेंट, अब यू पीपल आर फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, सब बी फार्मेसी के, फार्मेसी के, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, 2003 से 2007 में मैंने यहाँ पे बी फार्मेसी की थी। मुझे नहीं पता तब आईपीआर क्या होता है, एक सब्जेक्ट था जो हमने पढ़ लिया, मास्टर ऑफ फार्मेसी में जाके पता लगा। आपके माइंड में कभी कोई दुविधा नहीं आती कि आप बी फार्मेसी करके फंस गए? एनीवन आती है इसके माइंड में? अगर आती है तो निकाल दो। जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया था, मेरा ये एक था कि मैंने शॉप खोलनी। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सोच के बी फार्मेसी लाई थी कि इसको हम फार्मेसी की शॉप खोल देंगे, बी फार्मेसी। लेकिन यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बी फार्मेसी। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं जो पता ही नहीं चलते। आप जैसे पीछे लड़का हंस रहा है, इसको नहीं पता कि क्या चीजें बताई जा रही है। बाद में बी फार्मेसी कंप्लीट होगी तो ये फार्मेसी को दोस्त है। ये प्रॉब्लम हमारे के अंदर होती है कि हमें स्कोप के लिए आपको सोचना है कि आपको बाद में चीजें क्या क्या करनी है, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपको सोचना है कि बी फार्मेसी के बाद क्या क्या स्टेप्स हैं। पेटेंट, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। मैं आपको यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आया कि देखो ये मेरा मकसद ये है कि आपको पेटेंट का बिल्कुल प्लस पता होना चाहिए कि पेटेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता। यू कैन डिफाइन विद इन 5 मिनट। आप ये 5 मिनट में तय कर सकते हैं कि ये पेटेंट होगा कि नहीं होगा। ये मैं आपको आज एक शॉर्ट रूल बता रहा हूँ, आपको समझना है कि वो रूल क्या है। पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन और इनोवेशन। अब मैंने बोला इनोवेशन, एज सच इनोवेशन व्हाट इज नॉट डिफाइंड इन पेटेंट एक्ट।
पेटेंट हमेशा इन्वेंशन के लिए मिलता है, कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस। आपको 20 इयर्स के लिए राइट्स मिलेंगे। नोबडी कैन यूज योर इन्वेंशन विदाउट योर परमिशन, नोबडी कैन सेल योर इन्वेंशन विदाउट योर परमिशन। कोई व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना बेच नहीं सकता, किराए पे दे सकता, रेंट दे सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यू विल गेट राइट फॉर द 20 इयर्स। 20 साल खत्म होने के बाद फिर कोई भी बना सकता है, कोई भी बेच सकता है। पेटेंटेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पेटेंटेबिलिटी का। अब पूरा पेटेंट एक्ट इस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द नोवेल्टी, सेकंड वन इज द इन्वेंटिव स्टेप एंड थर्ड वन इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। नोवेल्टी मींस वो चीज कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए जिसका आप पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए वो चीज पहले चाइना में ऑलरेडी सेल हो रही है या अमेरिका में सेल हो रही है और आपने उसको इंडिया में पेटेंट फाइल किया, तो आपको पेटेंट के राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इंडिया में फाइल कर रहे हैं तब भी वो वर्ल्ड में कहीं पर भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। सेकंड, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए और वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस क्या होता है? इसको मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्वियस है। आर यू श्योर कि ऊपर नहीं जाएगा ये? अगर सपोज करो ये ऊपर जाता है तो मींस इसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा है। यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स टू द पेटेंट ऑफिस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस डिवाइस। इसमें मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है, मींस इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा है। हर एक चीज के आगे बोलने से वास्तव नहीं आती, तो मींस आपको पेटेंट ऑफिस को सारी डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी जो चीज आप पेटेंट के लिए फाइल करने जा रहे हैं। थर्ड वन इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। वो किसी ना किसी अच्छे पर्पसेस के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, तभी आपको पेटेंट ग्रांट होगा। ये तीन चीजें हैं जिसके बेसिस पे पूरा पेटेंट एक्ट डिफाइन करता है: नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पहली कौन सी माता है? आप लोगों के पास है नॉलेज, बट आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? देन हाउ यू कैन कन्वर्ट सरस्वती माता टू लक्ष्मी माता? पेटेंट विल हेल्प यू फॉर दैट। अगर आपकी नॉलेज इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो कि इससे कोई आउटपुट मिलता है, उससे आप कोई ब्रांड में जो मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, यू कैन अर्न सम मनी फ्रॉम दैट थिंग्स। तो आपको देखना है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से कमर्शियलाइजेशन बेनिफिट में ले सकते हैं। There are four of some country. If you want to file a patent application from Haryana, Punjab, and Himachal, then you can approach Patent Office Delhi. हरियाणा, पंजाब, साउथर्न चेन्नई, वेस्टर्न मुंबई, and इंडिया कोलकाता। ये स्टेट वाइज डिफाइन है किस किस कंट्री में आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। How to file a patent application? You can submit patent application through online mode, through offline mode, or you can submit by post office. तीन तरीके से आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पेटेंट फाइल करने के लिए पेटेंट एजेंट चाहिए, आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने बिहाफ पे खुद भी पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, बट वो पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ड्राफ्टेड होनी चाहिए। Now we will discuss about section 3. सेक्शन 3 क्या कहता है कि किन किन चीजों का पेटेंट फाइल नहीं हो सकता, वो सब चीजें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में लिखी हुई है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 क्या होता है? बेसिकली फ्रिवलेस इन्वेंशन। फ्रिवलेस इन्वेंशन क्या होती है? लाइक परपेचुअल मोशंस मशीन्स जो 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। सेक्शन 3B कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन और व्हिच इज कंटेंट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। गैम्बलिंग मशीन, गैम्बलिंग मशीन का कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। लाइक आपने काफी गैम्बलिंग मशीन डिवाइस फॉर हाउस पेंटिंग। अब गैम्बलिंग मशीन में क्या है? सपोज करें उसमें नोवेल्टी तो है,
इन्वेंटिव स्टेप भी है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? इसीलिए जितनी भी गन्स होती हैं, जितने भी एटॉमिक बम्स होते हैं, उसके लिए कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं, बिकॉज वो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, वो हमारी मोरालिटी के अगेंस्ट है। जो चीज मोरालिटी के अगेंस्ट होगी, सिस्टम के अगेंस्ट होगी, उसका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, चाहे वो इन्वेंटिव स्टेप भी हो, चाहे उसके अंदर नोवेल्टी भी हो। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी थ्योरी के ऊपर कोई भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। मान लीजिए जितने भी फार्मूलेज है नॉन न्यूटन्स के, उसके ऊपर पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। डिस्कवरी पे कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। आपको कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया, मैंने पेड़ देखा, सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं जिसने वो पेड़ देखा। आपको कि मेरे को इस पेड़ का, इस प्लांट का राइट चाहिए, उस प्लांट का राइट आपको नहीं मिलेगा। आपने उस प्लांट से कोई मेडिसिन डेवलप कर ली, उसके लिए तो आपको राइट मिल सकते हैं, नॉट फॉर द प्लांट। अंडरस्टैंड? बिकॉज आपने उस डिस्कवरी से कोई इन्वेंशन डेवलप की, उसके लिए राइट्स मिलेंगे, नॉट फॉर द होल प्लांट्स। डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग्स, किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, उसके ऊपर राइट्स नहीं मिलते। डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस को भी राइट्स नहीं मिलते। जो नॉन लिविंग सब्सटेंस, मान लीजिए आपको सबसे पहले मैंने ऐसा एक प्लांट देखा या ऐसा एक स्टोन देखा जिसकी इतनी सारी एक्टिविटीज है, उसके ऊपर भी आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन 3D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली 70 to 80% जो पेटेंट फार्मास्यूटिकल के कैंसिल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 3D। Mere discovery of new form of a known substance, this does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance। कि मान लीजिए आपके पास डिस्प्रिन की एक टैबलेट है, अभी तक वो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो नहीं करती, आपने कहा जी आज से वो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो करती है, हमने उसको डायबिटिक के पेशेंट को खिला के देखा, उससे डायबिटिक भी रिड्यूस होती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू यूज ऑफ द एक्जिस्टिंग सब्सटेंस, पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड, बिकॉज उसके बनाने का तरीका सेम है, कंपोजिशन सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोवार्टिस का पेटेंट कैंसिल कर दिया था। उन्होंने उसकी सोलेबिलिटी एनहांस की थी और सोलेबिलिटी एनहांसमेंट की वजह से उसका पेटेंट ग्रांट नहीं किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि नोवार्टिस ने पहले ही 20 साल इतनी 2,20,000 की टैबलेट बेची है और अब इसकी कॉस्ट को दोबारा से हायर प्राइस पे देने के लिए इसको हम सेल नहीं कर सकते। मेरा मिक्सचर, आपने दो कंपाउंड को मिक्स किया, सपोज करें आपके पास कंपाउंड है A which is showing analgesic activity, कंपाउंड B which is showing एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। आपने दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को मिक्स करके अब वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी शो कर रही है और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी शो कर रही है, तो ये क्या चीज हो गई? ऑब्वियसनेस। ऑब्वियसनेस पे कभी भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। अब नॉन ऑब्वियसनेस कैसे होगी? मान लीजिए वो एंटीडायबिटिक एक्टिविटी भी शो कर रही है बट स्टिल पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि एक यूज की वजह से पेटेंट नहीं मिलेगा। आपको उसके अंदर कोई नया रिएक्टेंट ऐड करना पड़ेगा, नया मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको पेटेंट ग्रांट होगा। मेयर अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, आपने दो चीजों को जोड़ के एक चीज बनाई, उसके बेसिस पे भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। खेती करने के तरीके के लिए भी पेटेंट ग्रांट नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ हरियाणा इज फेमस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस। लेकिन खेती करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, लाइक आपने कोई मशीन बनाई जिससे खेती ज्यादा जल्दी होती है या उससे फसल ज्यादा उगती है, उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट के लिए तो राइट्स मिल सकते हैं, बट द प्रोसेस यूज्ड ऑन द लैंड, पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड। आपको भी मैं इस तरीके से बीज लगाता हूँ या इस तरीके से सीड लगाता हूँ कि पेटेंट इससे ज्यादा आउटपुट निकलती है, यील्ड ज्यादा निकलती है, उसके ऊपर भी आपको राइट्स नहीं मिलेगी। एज ए फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट ये स्लाइड्स आप ध्यान से समझना अगर आपको पेटेंट एक्ट समझना है। एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलेटिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और अदर ट्रीटमेंट और रेंडर देम फ्री फ्रॉम द डिजीज टू द पर्सन, पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड। अब इसका क्या मतलब बना? इन सिंपल लैंग्वेज, मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर मेजर करने की एक नई मशीन बनाई। अभी कौन सी मशीन है जो आप कप पे लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है और आप उसका मैक्सिमम प्रेशर और लोअर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई मशीन लगाई, जैसे टेम्परेचर किससे मापते थे पहले? आप किससे मापते थे? थर्मामीटर आता था जो आप ऐसे पोर्शन पे लगाते थे जहां से उसका टेम्परेचर सेंसिटिव होता था और वो निकल जाता था। लेकिन आजकल क्या आती है? गन। अब वो गन किस तरीके से मेजर करती है टेम्परेचर, वो किस तरीके से लेजर लाइट जाती है और बॉडी के किस मैकेनिज्म से वो वर्क करती है, उसके लिए राइट्स नहीं मिलेंगे। उस मशीन के ऊपर पेटेंट राइट्स मिल जाएंगे। मींस द मैकेनिज्म अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी, उसके राइट्स कभी नहीं मिलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर राइट्स मिल जाएंगे। आप
इसीलिए कभी भी सर्जिकल प्रोसेसेस के लिए आपने देखा होगा 2 महीने पहले किसी ने एक वुमन के अंदर पित्ता हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जो व्यक्ति मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं पहला व्यक्ति जिसने ह्यूमन बॉडी के अंदर पित्त का ट्रांसप्लांट किया, मुझे पेटेंट दे दीजिए, मेरे अलावा कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मेडिकल प्रोसेसेस, सर्जिकल प्रोसेसेस, क्यूरेटिव प्रोसेसेस के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं होता, लेकिन आपके पास कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका पेटेंट ग्रांट होता है। इंस्ट्रूमेंट के लिए राइट्स मिल सकते हैं, नॉट फॉर द प्रोसेस। प्लांट और एनिमल्स के राइट्स नहीं मिलते। लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने गाना गाया, इन चीजों के लिए भी पेटेंट ग्रांट होंगे, बिकॉज़ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। रीजन क्या है, इसमें से कौन सा पैरामीटर फुलफिल नहीं करता? नोवेल्टी का, नॉन ओपननेस का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का। यस, आप बताओ। मैंने आपको 3 पैरामीटर बताए थे। गाना गाने के लिए पेटेंट राइट्स तो नहीं मिलेंगे, नोवेल्टी का पैरामीटर फुलफिल नहीं करता, इन्वेंटिव स्टेप का फुलफिल नहीं करता, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का। आप में से किसी गाना, यस, इन्वेंटिव, आई थिंक सेकंड, नो, यस, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लैप कर दो इसके लिए। ठीक है, गाना गाना कोई इन्वेंशन नहीं है, गाना गाना कोई इन्वेंशन है, मे बी नोवेल्टी इज देयर, आपने लिरिक्स लिखे, पहले वो लिरिक्स किसी ने नहीं पढ़े, वो नोवेल हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी है, म्यूजिक इंडस्ट्री। कॉपीराइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो सारी इंडस्ट्री कॉपीराइट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने देखा होगा अभी मूवीज हैं ट्रिपल आर में जिसने 1000 करोड़ कमाए, अगर वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पे आ जाते तो क्या वो इतने पैसे कमा सकते थे? नहीं कमा सकते थे, बिकॉज दे पीपल आर बाउंड विद द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। और कॉपीराइट को कॉपी करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मेंटल एक्ट के बेसिस पे भी कभी भी पेटेंट राइट्स नहीं मिलते। स्पोकन वर्ड्स, विजुअल डिस्प्ले, सिंपल डायग्राम, इनके लिए भी पेटेंट राइट्स नहीं मिलते। ट्रेडिशनल नॉलेज, जो चीज ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद डिग्री में लिखी है, उसके ऊपर भी पेटेंट राइट्स नहीं मिलेगी। इमेजिन फाइलिंग विद 21 सेक्शन 21 ऑफ द डोमिनियन एक्ट आर नॉट पेटेंटेबल। ट्रेंड्स इन द पेटेंट एप्लीकेशन, इंडिया में अप्रोक्सीमेट 2014-15 में 42,000 पेटेंट फाइल होते हैं, जिसमें से डिस्पोजल होता था only 14,000। नाउ you can see the difference. Filing is 50,000 and disposal is also 50,000. Top 10 Indian applicants from Patent Scientific Research and Development Organization (CSIR), Stalicio, DRDO, followed by Good Research, DSP Pro. Top 10 Indian applicants from Academic Institute and University, IIT, Chandigarh University, Shuli University. Top 10 foreign resident applicants, Qualcomm, Samsung, Mitsubishi. Where we are lacking basically in our country? Yes, सबसे लास्ट में पीछे, आप पीछे लास्ट में। बेटा पास जाओ प्लीज, पास जाओ। आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो, पीछे सबसे लास्ट में पास ले जाओ, पास ले जाओ। आपके से बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। यस, हाँ, पास ले जाओ, पास ले जाओ प्लीज, थैंक यू। हाँ, आपसे पीछे, यस, बाहर जाओ, बात थैंक यू, बहुत देर से बोल रहा, मैंने आपको बोल भी किया था। Where we are lacking, इंडिया में approximately 52,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते हैं पर ईयर, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 6 लाख, चाइना 50 लाख, जापान 2,80,000। 52,000 पेटेंट एप्लीकेशन में भी 75% जो एप्लीकेशन है वो मल्टीनेशनल कंट्रीज फाइल करते हैं। हमारी कंट्री, हमारे स्टेट हरियाणा में कितने पेटेंट फाइल होते हैं अप्रोक्सीमेट? कितने फाइल होते होंगे दादा? यस, yes 100 to 200 कितने? I think 100 to 200 एनिमल else। हरियाणा से मींस जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, यमुनानगर में भी है, गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में, इंक्लूड करके अप्रोक्सीमेट कितने पेटेंट फाइल होते होंगे? इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी आल्सो। अप्रोक्सीमेट 500 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते हैं पर ईयर हरियाणा से, और जिसमें से भी मोर देन 400 एप्लीकेशन फाइल करती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। सिर्फ 100 के करीब पेटेंट फाइल होते हैं हमारी हरियाणा, जिसमें एमएसएमई भी इंक्लूड है, लार्ज इंडस्ट्री भी। दिस इज द बेसिकली द लैक ऑफ अवेयरनेस इन आवर कंट्री। दिस सॉफ्टवेयर इज पेटेंटेबल इन इंडिया, यस और नो? सॉफ्टवेयर को पेटेंटली फाइल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज सच कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन बिकॉज़ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब सॉफ्टवेयर को हम पेटेंटली फाइल क्यों नहीं कर सकते? रीजन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता? नोवेल्टी का, इन्वेंटिव स्टेप का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी का।
यस, मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया फार्मास्यूटिकल का, कोई मेडिसिन सेल करने का, जैसे 1mg है, बहुत सारी एप्स है ऑलरेडी, तो आपने कोई और सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल है? कोई भी सामान सेल करना, गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज नॉट एन इन्वेंशन। नोवेल्टी पर्सपेक्टिव हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी है, बट दैट इज नॉट एन इन्वेंशन। यूएसए के अंदर सॉफ्टवेयर को हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को एज कंसीडर एज ए इन्वेंशन। बिजनेस मेथड को भी हम इंडिया में पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट रिगार्डेड एज ए इन्वेंशन। टोटल 30 फॉर्म्स होते हैं फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। अब आपको सिर्फ 1600 रुपीज पे करने हैं फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आप पेटेंट फाइल करते हैं। पहले आपको ये फीस पे करनी पड़ती थी 8000 रुपीज। गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 से इसको रिड्यूस करके सिर्फ 1600 रुपए कर दिया। मीन जो आपको गवर्नमेंट फीस पेटेंट फाइलिंग के लिए एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 41,000 रुपीज पे करनी पड़ती थी, अब आपको सिर्फ ओनली 18,100 रुपीज पे करनी। दिस इज द रीजन कि लास्ट 3 मंथ्स में इंडिया में अब तक के सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं। अदरवाइज क्या होता था, मैक्सिमम पेटेंट मल्टीनेशनल कंपनी फाइल करती थी, बट पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महीने में सबसे ज्यादा इंडियन एप्लीकेंट ने पेटेंट फाइल किया विद इन 3 मंथ, जनवरी से लेकर मार्च। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेटेंट डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंटर एंड द लोकेशन ऑफ द इन्वेंशन, असाइनी, पेटेंट एप्लीकेशन नंबर, मींस एवरीथिंग इज गिवन ऑन द पेटेंट डॉक्यूमेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की, हमारा पेटेंट ग्रांट हो गया। यमुनानगर में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हमने देखे हैं, वो सोचते हैं 3000 सर्टिफिकेट हमारे पास, वो फाइलिंग का होता है, पर हमें पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले फाइल होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंपनी स्पेसिफिकेशन, वो 18 महीने के बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि आप 18 मंथ्स के लिए पेटेंट करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट फॉर द अर्ली पब्लिकेशन। तो विद इन 1 मंथ आपका पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगा एट द पेटेंट ऑफिस वेबसाइट। देन विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं करी तो आपका पेटेंट कैंसिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा आफ्टर 4 इयर्स। उसके बाद आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन को फाइल कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। मान लो मैंने पेटेंट फाइल किया और आप लोगों की इच्छा है देखने के लिए कि मेरे पेटेंट के अंदर कितनी क्राइटेरिया है ग्रांट होने के लिए, तो आप भी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ मी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी करती हैं, जब पेटेंट पब्लिश होता है पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे, तो उसको अर्ली पब्लिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए दूसरी कंपनी फाइल कर देती है ताकि उसका आउटपुट निकल कर आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेटेंट एक्ट। अब उसके बाद अब रिपोर्ट आएगी और अगर आपने उसका रिप्लाई दिया एग्जामिनर का सेटिस्फैक्टरी, तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। आपने ये वर्ड देखा लिखा हुआ ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क का। सपोज कीजिए आपको नेक्स्ट टाइम में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यस एक बिजनेस स्टार्ट करना और एक चाइल्ड का बर्थ होना बहुत हार्डली सेम थी। एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? नेम। किससे पूछते हो नेम? आप नेम किससे पूछते हो बच्चे के लिए? कई लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग पंडित की बात करते हैं, और कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो भी ऐसे चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी भी कंपनी का नेम स्टार्ट करने के लिए किसी भी पंडित के पास मत जाना, क्योंकि पंडित के बताया वो नाम ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं होते हैं। उसके लिए आपको आईपी पंडित के पास जाना पड़ेगा, जो आपको ब्रांड ने बताएगा कैसे आपके सेट करने। मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है ऐसी जो 6 महीने के बाद बंद करनी पड़ती है। उस टाइम वो लोग कहते हैं कि हम तो यही चलाएंगे, हम तो बदलेंगे नहीं, हमें तो पंडित जी ने कहा। जैसे ही लीगल नोटिस आता है तो फिर सब हो जाते हैं। पर आप क्या होता है, मान लीजिए आपका नाम क्या है? वरुण। आज से आपका नाम शाहरुख खान पसंद है? यस नहीं, सिट डाउन। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब इसलिए इतने सालों से वरुण नाम सुना है, कल से कोई शाहरुख खान जाएगा इसको थोड़ा लगेगा, चाहे फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, स्टिल ही डजंट लाइक। रीजन इज दिस, बच्चे का नाम आप उसको कब तक बदल सकते हो? कब तक बदल सकते हो? फर्स्ट से पहले पहले, आजकल तो वैसे प्ले से पहले बदल सकते हो। 10वीं में जाके थोड़ी बच्चे का नाम बदलोगे। लाइकवाइज कंपनी का नाम आप इमीडिएटली बदल सकते हो। ये थोड़ी कि 10 साल आपने कंपनी डाली फिर कंपनी का नाम बदल रहे हो आप। सो दिस इज द थिंग्स, क्योंकि आपने उसकी पॉपुलैरिटी कर दी, लोग आपको जानते हैं, आपने उसकी ब्रांडिंग कर दी। ट्रेडमार्क आर स्टैंडर्ड फॉर साइन, वर्ड, लेटर, कलर, कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार चिन्ह।
ऐसी आइडेंटिटी, ऐसा मार्क जिसकी वजह से लोग आपको पहचान सके, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। वो कुछ भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, शेप ऑफ द गुड्स भी हो सकते हैं। These all things can be protected by the trademark protection. इसके लिए जो ड्यूरेशन होती है अनलिमिटेड टाइम की होती है, पर हर 10 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना है। अगर आप 10 साल के बाद रिन्यू नहीं करवाएंगे तो आपका ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाएगा। 45 क्लासेस होती है ट्रेडमार्क की। अगर आपको कॉस्मेटिक बेचना है क्लास 3 में, मेडिसिन बेचनी है क्लास 5 में, मशीन टूल क्लास 7 में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्लास 9 में, फूड आइटम्स क्लास 30 में, टेक्सटाइल क्लास 24 में, रेडीमेड गारमेंट्स क्लास 35 में, ट्रेडिंग 35 में, कोई कोचिंग सेंटर खोलना है 41 में, रेस्टोरेंट 43 में। मार्केट में क्वेश्चन नोटिस आता है, कृपया करके हमारा ब्रांड नेम मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी भरे लग जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर टू वॉर्न द पीपल अबाउट देयर ब्रांड नेम। आप मार्केट में आपको बॉलीवुड मिलेगा, आप ले लेंगे ये? क्यों? व्हाई? आप ले लेंगे? क्यों? आप ले लेंगे? क्यों? ये भी लोगे तो आप सीधा ही वापस लेने का पानी पिएंगे और कोई नहीं लेगी। बेच वाली तो ओरिजिनल, इसमें से असली कौन सा है? किसने कहा असली है? किसने कहा आपकी असली है? यस, कैसे कह दिया आपने असली है? What is the criteria to identify this is a original product or not? क्या आपने इसका पानी बेच पाओ? ये दोनों मेरे हाथ में है, मैंने मेरे को पानी पिलाया है IPR कॉन्फ्रेंस में, मैंने वहां फोटो खींची है। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिनलिटी? आप कैसे कह सकते हो ये असली नहीं है? आइडेंटिफाई द सिंबल, ये सिंबल। मुझे लगा ये वो मार्क करके चाहते हैं आप टीचर आपकी शीट पे दे। Who said this is a Nike mark? This is called goodwill. आपकी गुडविल है? गुडविल कैसे बनती है? एक टीचर होती है जो क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की गुडविल होती है, चाहे शरारत नहीं भी कर रहे हो तब भी लगता है कि इसने एक शरारत करी है। वो क्या होती है? गुडविल होती है, बैडविल होती है। और गुडविल कैसे बनती है? इट टेक्स टाइम, समय लगता है। अपने बालों को कहो जुग जुग जियो, कौन कहता है ये? किसकी ऐड है ये? अपने बालों को जुग जुग जियो है विद्या बालन। ये अलग है आपकी विद्या बालन याद आ रही है लेक्चर। इसीलिए पतंजलि कोई बात जैसे धन क्रांति, किसी भी गुरु के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी रिलीजियस के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ब्रांड नहीं। अंडरस्टैंड? दिस इज द रीजन कि हमारी कंट्री में बहुत सारी शिव शक्ति एंटरप्राइज, शिव शक्ति एंटरप्राइज। आप अगर जाओगे कभी अनाज मंडी जाओगे तो वहां मोस्टली शिव शक्ति लिखते हैं, देखा है। एक अलग ही चलता है वहां शिव शक्ति, कोई पेड़ी लिख देगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप लिख देगा, कोई एक्सटेरियर लिख देगा। तो किसी भी गुरु के व्हाट इज द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक क्या होता है? आप उसके ऊपर मोनोपोली राइट्स नहीं ले सकते। क्या सपोज करो आपको कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करनी है, तो क्या BMW फार्मास्यूटिकल खोल सकते हैं? मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। किसी लेडी ने अभी कल परसों में से ट्रेडमार्क करवाने आए, उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड करवा ली, बेंच लाइफ केयर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और वो मुझे कह रहे बेंच के नाम से ट्रेडमार्क फाइल कर, और बेंच इज ए वेल नोन मार्क्स। अगर मैं अप्लाई भी कर दूंगा तब भी वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग ए ब्रांड नेम। आपको सोच के नाम रखना है कि जब आप ब्रांड नेम रखते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? जिसमें हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, सर्विस मार्क लाइक कोरियर सर्विस, एजुकेशन सर्विस। यहाँ पर आपका एजुकेशन मिलती है, इसमें एजुकेशन सर्विस। कलेक्टिव मार्क सप्लाई बाय द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेशन मार्क लाइक ISI, ISO, गुड मार्क, वेल मार्क लाइक मर्सिडीज, रिलायंस, कोरियर, टाटा। व्हिच वन इज रीजन? इसमें असली कौन सा है? ये कहाँ खुला हुआ है? ये मुलाना यूनिवर्सिटी के पास खुला हुआ है, डोमिनिक पिज्जा। एंड द maybe the people think like that कि शायद रूरल एरिया के लिए इन्होंने ब्रांच खोल दिया अपनी डोमिनोज में। सोच सकते हैं कि नहीं? Which one is the reason? Two people are very biased. In this case, अगर ये थोड़ा सा मिलता था तो आपने कहा ऊपर वाला नकली है, नीचे वाला असली है। इसमें दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज है। अगर आप होंडा को 100 ml बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो हुंडई बन जाएगा मेल्ट होने के बाद। Is it or not? But in this case, we said both are the original. This is called
Goodwill, this is called, which one is original? Which one is original? Every product is original. आप इसे नकली नहीं कर सकते, फेयर एंड लवली नहीं कर सकते ना? Yes. It look like a similar to the fair and lovely. अब fair and lovely भी असली होता तो उसको glow and lovely रखना पड़ता. Fair and lovely ने अपना नाम क्या रख दिया? Fair तो आया नहीं शायद glow वाले. Is it or not? But this is against sometimes people are using a artistic work. वो कंपनी का artistic work use करते हैं, but brand name is different. Collage and Colgate. So these all are the example of the counterfeit products. This is the case of the Jaipur. जहाँ पर एक व्यक्ति इनकी जस्टिफिकेशन क्या थी कि हम इसके अंदर फ्रूट जूस डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फ्रूट इन. बट दिस इज द डायरेक्ट केस ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड. आप फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए. कितने लोग दवाई खरीदने जाते हैं और केमिकल नेम पढ़ते हैं? सपोज करो आपने चंडीगढ़ से एक मेडिसिन खरीदी, मेटजोल, डॉक्टर ने लिख दिया आपको, और फॉर द एलर्जिक प्रिपरेशन इट्राकोनाजोल. आप यमुनानगर में आपने केमिस्ट को कहा कि मुझे मेटजोल दे दो, उसने आपको दे दिया अल्बेंडाजोल, और आप इट्राकोनाजोल की जगह डेली अल्बेंडाजोल खा रहे हो, तो आपको क्या होगा? फ्री हो जाओगे आप समाज से, दुनिया से, सारी तरीके की एलर्जी ठीक हो जाएगी आपकी. बिकॉज इफ यू आर ईटिंग डेली अल्बेंडाजोल, तो आपको पता है कि क्या होता है? दिस इज यूज्ड फॉर दिस, दिस इज यूज्ड फॉर अल्बेंडाजोल. किसके यूज किया गया है? इस्माप्रोजोल तो आप बच भी सकते हो, गैस्ट्रिक डिप्रेशन के लिए होते हैं, लेकिन अल्बेंडाजोल से आप बचोगे नहीं. Sometimes it's a life threatening also. Means एक रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है. इसलिए ट्रेडमार्क को किसी का मिसयूज करना किसी क्रिमिनल हो. कभी भी आप जाओ एज ए फार्मेसी स्टूडेंट के हो कि आपने केमिकल नेम पढ़ना है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा क्या है, हमेशा केमिकल नेम पढ़ाना चाहिए और ब्रांड नेम बताना चाहिए न्यू गाइडेंस के अकॉर्डिंग. How to select a trademark? It should be easy to spell, it should be easy to pronounce. Like Sony Tata Lines. कुछ नाम अपनी तरफ से पॉइंट कर सकते हैं, लाइक कोडैक एंड टाटा. ऐसा देयर इज नो मीनिंग इन द डिक्शनरी कोडैक एंड टाटा, बट आप लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है? इजी टू प्रोनाउंस. किसी भी जगह के नाम पे, यमुनानगर फार्मास्यूटिकल, कल को सपोज करो आपने कंपनी खोली है, आप यमुनानगर फार्मास्यूटिकल खोलोगे तो आपको लिस्टेड नहीं है. अंडरस्टैंड? यमुनानगर सॉफ्टवेयर कंपनी, यमुनानगर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ सोचोगे चलो हम ये टेक्निकल लगा लेते हैं, वाई नगर लगा लेते हैं, उस केस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वाई नगर उसमें हो सकता है, यमुनानगर हो, जोहार नगर हो, गुहार नगर हो. ठीक है? दैट क्रिएटेड डिस्टिंग्विशनेस. आपका ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड नेम दूसरे के नाम से अलग पहचान रखता हो. दिस इज कॉल्ड ए ट्रेडमार्क. अंडरस्टैंड? बट यमुनानगर इज अ वेरी बेस्ट ऑफ द लोकेशन. अवॉइड डिस्ट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ द गुड्स. बेस्ट, परफेक्ट, सुपर, जेन्युइन, सुप्रीम, प्रीमियम, गोल्ड, सिल्वर, these all are the descriptive words. ऐसे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस. आप ब्रांड नेम खुद भी सर्च कर सकते हैं IPR की वेबसाइट पे जाके, वहां पे आपको ब्रांड नेम मिलेंगे, आप खुद उसको सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास क्लास 4 क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए. इसमें आपको फीस पे करनी पड़ती है, ओनली 4500 रुपीस. इफ यू आर गोइंग टू फाइल बाय द नेम ऑफ इंडिविजुअल, एंड अगर आप क्लास एंटिटी के नाम से फाइल करते हो तो आपको 9000 रुपीस पे करना है. इंडस्ट्रियल डिजाइन. इंडस्ट्रियल डिजाइन आर कंटेंट फॉर ऑर्नामेंटल फीचर, एस्थेटिक फीचर. कोई प्रोडक्ट बाहर से कैसे दिखाई देता है उसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कोई भी शेप हो गई, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कोई भी ऑर्नामेंटल फीचर होगा, इसमें हम हमेशा नॉन टेक्निकल फीचर को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर आपको टेक्निकल फीचर प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या फाइल करना पड़ेगा? पेटेंट एप्लीकेशन. नॉन टेक्निकल फीचर हमेशा डिजाइन के प्रोफाइल होते हैं, टेक्निकल फीचर के लिए आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. These are the consumer product which is protected by the industrial design. Packaging and container, pharmaceutical products, textile and jewelry. These are the example of the industrial design. सबको पता है हाथ में पैक का निशान है, लेकिन मार्केट में इसकी की चीजें नहीं दिखती. We can protect such type of design for the industrial design. Maybe the purpose of the product is same, but outer appearance is different. We can protect outer appearance of the device by the industrial design. लेनोवो का फैन हो गया, दिस इज प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल डिजाइन. प्राइमेक्स, जितने भी प्रेशर, किसी भी कार का डिजाइन सेम होता है बिकॉज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. किसी भी प्रेशर कुकर का डिजाइन सेम होता है बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजाइन. ये तिरुपति फार्मास्यूटिकल कंपनी का और जनरल मोटर का उनका डिजाइन रजिस्टर्ड है मॉडल्स का. अब क्या होता है कि जैसे आपको डिजाइन के लिए ड्यूरेशन मिलती है 15 साल के लिए,
लेकिन कई लोग आपको अपने फोटो की शेप को ट्रेडमार्क के थ्रू भी प्रोटेक्ट करते हैं, टू प्रोटेक्ट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस। सिस्टम होती है 15 इयर्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 15 साल के बाद उस डिजाइन को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। कुछ चीजों को हम डिजाइन नहीं मिलता, लाइक कैलेंडर्स, सर्टिफिकेट्स, मैप, लेबल्स, रिलीजियस सिंबल्स, जितने भी रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनके डिजाइन मिलेंगे, फ्लैग्स, एम्बलम्स, मेयर चेंज इन साइज। इंडिया में डिजाइन एप्लीकेशन है ना बहुत इजी है, विद इन 2 और 3 मंथ्स के बाद आपके पास सर्टिफिकेट कॉपी इशू हो जाती है। एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल टाइप के भी आईपीआर प्रोटेक्शन हो सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टाइसन एयर ग्रिड। आपको हैंड इंसर्ट करने हैं, आपके हाथ ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाएंगे और ड्राइड हो जाएंगे। दिस टेक्नोलॉजी इज प्रोटेक्टेड बाय, टेक्नोलॉजी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम? पेटेंट से। ब्रांड नेम डाइसन बाय ट्रेडमार्क, आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस बाय लेटेस्ट डिजाइन एंड कैटलॉग बाय द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट आर ग्रांटेड फॉर म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक। आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई गाना गाया, इन सिंपल लैंग्वेज कोई भी आइडिया जो आपने पेपर के ऊपर लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा, उसको हम कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे देयर इज नो ऑफिशियल प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, डिजाइन के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है अपने राइट्स को लेने के लिए। बट कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जिस दिन से आपने उसको बनाया वो आपको कॉपीराइट है। बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने ही उसको बनाया। You are the first original author of that work. अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपके नाम पे वो कॉपीराइट, चाहे आपने गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी है या नहीं। इसमें 2 तरीके के राइट्स होते हैं, मोरल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। मान लीजिए आपने एक बुक पब्लिश करने के लिए दे दी किसी पब्लिशर को, उसके पास क्या राइट्स है? आपने बुक लिख के दी हिंदी में, वो आपकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपका नाम एज एन ऑथर देना मैंडेटरी है बिकॉज़ ऑफ द मोरल राइट। नैतिक अधिकार के अकॉर्डिंग आपका नाम देना मैंडेटरी है, चाहे वो किसी मर्जी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। Economic rights, उस बुक से कितना बेनिफिट हुआ, that depends on the agreement between you and that person. आप दोनों का एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। मोरल राइट्स का आपका राइट ऑफ ऑथरशिप आती है, राइट ऑफ इंटीग्रिटी आती है, बट यू डोंट हैव राइट फॉर द डिस्प्ले। आप ये नहीं कह सकते कल को मैं ही जाके किताबें बेचूं। क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है, आप किसी को कॉपीराइट यूज करते हैं, मिनिमम फाइन पे करना पड़ता है आपको 50,000 रुपीस से 2 लाख रुपए और 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होती है। मान लीजिए किसी किताब की कीमत है 20,000 की, आप उसको पढ़ रहे हैं डेट पर मेरी फोटोकॉपी करके, इज इट क्राइम और नॉट? किसी किताब को फोटोकॉपी करके पढ़ना इज इट क्राइम और नॉट? दैट इज नॉट ए क्राइम फॉर द एजुकेशन पर्पस। बट अगर आप उसको बेच रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, देन इट्स ए क्राइम। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? जो बेसिकली पर्टिकुलर ज्योग्राफी को फेमस करता है, लाइक व्हिच इज फेमस फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। 3 चीजों के लिए मिलता है और ये ग्रुप ऑफ कट पर्सन्स को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता। ये मान लीजिए यमुनानगर में 50 लोग हैं जो डिफरेंट टाइप के प्लाईवुड बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो 50 लोग प्लाईवुड बनाते हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा। वो 50 लोग तो डिफरेंट टाइप का लोगो लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके का प्लाईवुड बनता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन देनी है तो उसको ट्रेडमार्क के लिए फाइल करना पड़ेगा। एग्जांपल्स बासमती, मसूर, सैंडलवुड, मसूर, जैस्मीन, these all are the example of the geographical indication. Trade secrets. Do you have any secrets? आप लोगों के सीक्रेट्स हैं? Yes or no? Yes or no? कोई सीक्रेट नहीं आपका है? How to guard your secrets? आप अपने सीक्रेट्स को कैसे बचाते हैं? मान लीजिए आपने कोई बात है अपने दोस्त के साथ, आप उसे कैसे बचाएंगे कि वो किसी को ना बताए? Yes? आपका फ्रेंड कौन सा है? बेस्ट फ्रेंड? सपोज करो आपके साथ बैठा आपका फ्रेंड है, आपने इसको एक बात बताई और आप चाहते हैं किसी को ना बताए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप? ट्रस्ट है कि आगे ना ट्रस्ट के अलावा नेक्स्ट और क्या तरीका अपनाएंगे? नहीं कोई आइडिया नहीं है, बस ट्रस्ट के बेसिस पे आपको उन्हें क्या मान लीजिए वरुण की एक कंपनी है और किसी कंपनी का ओनर है कंपनी का, और इनका नाम क्या है नेक्स्ट का? विष्णु। वरुण और विष्णु उसका एम्प्लॉई है। उसने कहा कि मैं यूएस से जा रहा हूँ और ये मेरे क्लाइंट की डिटेल है और ये आपने किसी को नहीं बताना। आपका नाम क्या है? और कार्तिक भी साथ में एम्प्लॉई है। कार्तिक ने डायरी में सारे क्लाइंट्स पढ़े और साथ वाली कंपनी का मैं कल से आपके यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और सारे क्लाइंट की डिटेल लेके आ रहा हूँ।
ये वापस आया वरुण यूएस से, तो उसका शक किस पे आएगा? विष्णु कहेगा मेरा विश्वास छोड़ दिया आपने, सब कुछ बता दिया। वो कहेगा मैंने तो बताया नहीं है, कार्तिक छोड़ के नौकरी किया, शख्स को बताओ। कहेगा कार्तिक को तो मैंने बताया नहीं था, बताया तो तेरे को था। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉलो दिस थिंग्स? हमारी कंट्री भारत ट्रेड सीक्रेट पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए हमारी कंट्री में आईपीआर फाइल हुई। हमारी कंट्री में ट्रेड सीक्रेट ही चलता था, ज्ञान बांटने से नहीं बांटना ज्ञान। आपने अपने ज्ञान को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से प्रोटेक्ट करना है, मत बांटा करो ज्ञान। आजकल एडवाइस का जमाना नहीं है, ना ही लीगल ना ही नॉन लीगल। आप उसको अपनी नॉलेज को लीगली प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आप कमर्शियलाइज करें। मैंने आपको कहा ना, सरस्वती माता से क्या बनाना है? लक्ष्मी माता। कब बनेगी? जब आप किसी को नहीं बताओगे। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, किसी को नहीं बताते, उनके पास लक्ष्मी जल्दी आ जाती है। कैसे आती है? नंबर्स में। तो होते करते वो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डोंट डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अंडरस्टैंड? पहले का जमाना अलग होता था। इसमें क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट में आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए राइट्स मिलते हैं, 20 साल से ज्यादा के लिए मिलते हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपका आइडिया, आपका सीक्रेट एक बार डिस्क्लोज हो गया, तो आप दूसरे व्यक्ति को वो चीज बनाने के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने कोई भी लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग दे दिया। मान लीजिए आपकी कंपनी डिफरेंट टाइप का कोका कोला बनाती है, उसी का टेस्ट आप कितनी कंपोजिशन कितने एमएल में डालते हो वो सिर्फ आपको ही पता था, लेकिन सेम कंपनी सामने वाला बनाता तो था कोका कोला, लेकिन सेम टेस्ट नहीं आता था। उन्होंने कंपोजिशन देख ली, सेम टेस्ट आना शुरू हो गया, तो वहां से आपका आइडिया डिस्क्लोज होगा, तो आप रोक नहीं सकते कि उसका पेटेंट राइट्स नहीं दिया। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइको, जो हर साल फ्री डिप्लोमा कराती है, डीआर 101 जनरल कोर्स ऑफ आईपीआर। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी 4 डिप्लोमा होते हैं, 101, 102, 103, 104। ये चारों डिप्लोमा आप लोग करो। अगर आपका इंटरेस्ट है आईपीआर में, ना भी हो तब भी करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप नकल मार के पेपर दे सकते, क्योंकि इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी से रिलेटेड होंगे, जिसमें 40 में से 40 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके 60% मार्क्स आ गए तो आपको सर्टिफिकेट इशू है। पहले हार्ड कॉपी आती थी, अब ऑनलाइन आती है। इसके अलावा आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, इसमें वाइको पे पेड कोर्सेज भी है। आप वो सिंपल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर्स आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो आप एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार हर साल 120 वुमेन्स को ट्रेन करती है इन द फील्ड ऑफ आईपीआर। पेटेंट को लिखते कैसे हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, सब चीजें सिखाई जाती है। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। If you have any question, you are free to ask. Yes. जैसे आपने बोला कि आर्म्स के लिए कोई पेटेंट होता है, तो लाइक अब कोई वेपन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेगी? गवर्नमेंट अपने नाम से प्रोटेक्ट कर सकती है, हमारे नाम से नहीं करेगी। आप प्रोफेसर तस्वीर दिख रहा फोटो ले रहे हैं मेरी, पहला अधिकार इसका बनता है, इसकी फोटो है उसका, जिन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया उनका, या जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या प्रोफेसर तस्वीर दिख रहा है, इसका बनता है टर्म। दिस इज अ मैटर ऑफ द कॉपीराइट। किसका राइट बनता है बताओ? अगर आप किसी भी फोटो में मौजूद हो तो पहला राइट आपका बनो, ठीक है? चाहे किसी न्यूज़पेपर में आई हो आपकी फोटो, आप कह सकते हैं कि मेरी फोटो मुझे दे दो, या आपने मेरे से कुछ भी ना मेरी फोटो को लगा। अंडरस्टैंड? चाहे वो सोशल पर्पसेस के लिए, अगर आप किसी भी फोटो में अवेलेबल है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अगर आपने देखोगा गूगल पे पढ़ना कॉपीराइट मंकी केस, एक ग्रुप के अंदर एक फोटोग्राफर गया, उसने फोटोग्राफर खींचा था मंकी ने उन पे अटैक किया और कैमरा लेके सेल्फी लेनी शुरू कर दी, जैसे आप लोग लेते हैं। बाद में गया, उन्होंने मेमोरी कार्ड से फोटोग्राफ निकाली, काफी अच्छी आई, उन्होंने उसके मास्क बनाने शुरू कर दिए, उसके जो पार्टी सेंटर मास्क यूज होते हैं वो शुरू कर दिए, ड्रेस यूज कर दी, तो उन्होंने काफी पैसा कमाया। बाद में उस व्यक्ति ने पोस्ट में लिखा कि उसने फोटोग्राफ कैसे क्लिक की गई, उसने तो क्लिक की नहीं थी, मुझे क्लिक की थी। तो अगर एनिमल्स के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कौन क्या आता है? ट्विटर ने कहा ये तो कॉपीराइट मंकी का बनता है, इसलिए पैसे कैसे कमाने। उन्होंने यूएस
कोर्ट केस कर दिया, इसके ऊपर कॉपीराइट अधिकार बनता था मंकी का, इसलिए इससे पैसा कमाया। तो यूएस के कोर्ट कहता है कि आप इसको डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ परसेंटेज उसको दे दी, जिसका कैमरा था, कुछ परसेंटेज वो जू को दे दी कि इन मंकी के रखरखाव के लिए अच्छा खाना खुना दिया जाए उसकी, और कुछ परसेंटेज जू को दे दी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। ठीक है, क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है उस व्यक्ति का अधिकार जिसने फोटो ली है, और उसमें ये तो लिखा हुआ था कि वो व्यक्ति जानवर है या इंसान है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपीराइट। अगर किसी ने उसको क्लिक किया है, राइट उसके पास नहीं है। मैंने अलाउ किया, मैं लेक्चर देना उस परमिशन से फोटोग्राफर, लेकिन आप रैंडमली कहीं जा रहे हो, मैंने देखा है कि आजकल लोग वीडियो बना लेते हैं, या आपने घर का रास्ता सीधा हुआ है, गूगल से कोई फोटो डाउनलोड की, अपनी फोटो पर डाल दी, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है तो कहता कॉपीराइट है कि नहीं है। गूगल के नीचे एक सिंबल्स होते हैं, उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर हो सकता है कि आप कौन सी फोटोग्राफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत सारे मैंने लोग देखा है कि जब कोई प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं या रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, गूगल से फोटो उठाई और डाल, वो तो एक्शन लेते हैं, बट इट इज अ डायरेक्ट केस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि उससे कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है। आपने जर्नल में पैसे देके पेपर पब्लिश करवाया 5000 पे, आपने पैसे दिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी। जर्नल से जो पेपर डाउनलोड करेगा उसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, दैट इज आल्सो कॉमर्शियल एक्टिविटी। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर choosing any photograph without the permission of that person. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing such a wonderful knowledge that you have on patents, copyright, geographical indications, and most importantly, simple words. Thank you very much, sir. Now, I would like to request Dr. Kumar and Dr. Ashwin to facilitate our speaker of the day. Please, sir. Thank you very much. Our second speaker of the first technical session has also joined, that is Advocate Sophie Sharma. She is Senior Patent Associate and founder of Intendia Advisors LLP, an IP boutique firm located in Bangalore and Mumbai. She is practicing IPR lawyer and a public speaker having 11 plus years of experience in handling IP issues globally. Her area of expertise is billing, drafting, prosecution, and handling opposition matters related to patents, trademarks, copyright, geographical indications globally. I welcome you, ma'am. She will be giving us a brief on youth innovation, innovating for a better future. A very good afternoon to one and all. Thank you so much, Priyanka ma'am. It was nice seeing you after a long time. I hope, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Just a moment. Please enable me so that I can share my presentation. Thank you. So very good afternoon to one and all. I hope that all of you are keeping well, and thank you once again for this opportunity where I can meet and share my knowledge as well as learn from you guys.
And I would like to say thanks again to the GG Scope team and especially to my all-time mentor, Dr. Kumar Gaurav sir. Thank you so much. Hope you are doing well too. So as you all of you know that today is a World Intellectual Property Day, and this time the WIPO's theme itself is intellectual property and youth. That is the innovation for the better future. So when I was preparing for this presentation in early morning today, I was just thinking that intellectual property and giving rewards for the intellectual property that you are creating, it's not like recent things. You know, when you go back and you look back on the ancient times, the time of kingdom when there was a king, you see in the king's court also there were the poets, the artists, the painters, the intellect people like Chanakya, and there were so many dancers, singers, all of them. And in fact, at some places, if you go back in the history of India, you will see that at some places the king himself considered these people as their Nauratna. And you know what is the most important thing that strikes me when I was thinking about it is that these people who are the creators, who are the poets, who are the painters, who are the singers, or who uses their intellect to create anything, they basically give their intellectual things, right, to entertain us. I mean, I'm talking about the ancient times, to entertain the king and many people. But in exchange of those intellectual things, kings used to reward them and motivate them by giving the currency, gold, land, and palace. So the most important thing here is that it's not like that the IP is something recent. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ रीसेंट चीज नहीं है, ये हिस्ट्री से होता जा रहा है. हम हमारी हिस्ट्री में अगर देखें तो आप तानसेन का नाम सुन लीजिए, आप कबीर का नाम सुन लीजिए, आप चाणक्य का नाम सुन लीजिए, एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. आप पैलेसेस देखिए, कुछ भी देखिए, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल, यू विल सी दैट फॉर ऑल ऑफ दोज क्रिएशंस, राइट, द किंग यूज्ड टू रिवॉर्ड देम विद द टेंजिबल. तो द थिंग इज, जब हम हमारी कोई इंटेलेक्चुअल या इंटेंजिबल चीज को शेयर करते हैं तो उसके एक्सचेंज में हमें कुछ टेंजिबल बेनिफिट या रिवॉर्ड मिलता है. ये कल्चर रहा है इंडिया का, इसलिए ये मानना कि ये नया है, नहीं. आई थिंक द डेफिनेशन और द वर्ड्स हैज बीन चेंज्ड अ लिटिल. हम उस टाइम उसको कला और उससे संबोधित करते थे और आज हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं. हेलो, यस. Thank you so much. Yeah. So I was saying that intellectual property, we have been exchanging the intellectual property since the ancient times, right? Be it a kind of any kind of innovation. If you get the time to see the palaces, right, you will see that they have got so many provisions which you link with today's innovation. You will say, yes, they were also having a kind of geyser or the cooler or the AC, but not the way that we are having. We are having it as in the form of a product, but they have made the arrangement like that. So today is a World Intellectual Property Day, but we need to first understand that why we are celebrating it today. Why? Why? Because we want to learn about the role of the intellectual property rights
that play and encouraging innovation and creativity in us. For example, if I have some creativity, okay, I know that I am creative. Okay, or maybe if you have some business plan or you have some invention with you, maybe you are coming from the pharma background, daily you used to visit your labs and you do something new in your lab, and you get down or you zero down on something which is really incredible. But do you really know that how to protect this particular creativity? We don't know. I would say that we still are unaware. We don't know that how to make money and how to commercialize our creativity. But today, within this duration of time, I will share with you that how you guys can do it. I was like fortunate to listen very few part of Dr. Taneja's speech, and it was always wonderful to hear from him. And he has already covered the different kinds of IP. So today I'm going to share with you that how you can leverage, right, based on these, what you need to protect, how to protect, and when to protect. So I will try to answer all these questions, and also that talent is everywhere. Skill is also everywhere. What is important is awareness. It is same way that when you go and buy, like since childhood, I would say since childhood, we have been raised in such a manner by our parents and the people around us, including the family members, that you have to study properly. फिर आपको अच्छे से money earn करना है. Money earn करने के बाद you have to have some security. Now security in the form of good bank balance, security in the form of having a land, or maybe security in the name of having a house, right, in your name. Tell me, जब भी हम कोई लैंड लेते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं, be it your car, your scooter, be it your bicycle, be it your land, be it your house, what is the first thing that we do? Ownership. तो हम हमारे टाइटल, जो एग्रीमेंट के पेपर्स होते हैं, उसमें हम टाइटल में हमारा नाम रहता है. That shows that this thing belongs to us. The same way, जिस तरीके से आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी में जब तक आपकी ओनरशिप नहीं दिखेगी, आप कहीं भी जाके ये नहीं कह सकते कि ये मेरी चीज है और आई एम द ओनर ऑफ दिस. Same way, intellectual property rights, which is also called as intangible assets, उसमें भी आपकी ओनरशिप होना बहुत जरूरी है. इसलिए जस्ट उसे क्रिएट करके हमें छोड़ नहीं देना है. उसे क्रिएट करके हमें नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि हम इसको कैसे सिक्योर करें. IP राइट्स एक शील्ड भी है और एक स्वॉर्ड भी है, that we will get to. So why we are celebrating World Intellectual Property Day? So that we can get the total awareness about the intellectual property rights and how it plays an important role in us. So it's not like we are inventing something. It's like we are giving our society also something. आप सोचिए कि अगर कोई इंसान कभी ये सोचता ही नहीं कि मोबाइल जैसा भी कोई एक डिवाइस बन सकता है, या कोई ये कभी सोचता ही नहीं कि इस तरीके से जूम मीटिंग के थ्रू पॉसिबल है कि मैं बेंगलोर में हूँ एंड आप सब लोग वहां पर हैं, किसी और प्लेस पर हैं, तो क्या ये पॉसिबल होता कि मैं और आप इस तरीके से इंटरैक्ट कर पाते? नहीं. तो ये किसी का इनोवेशन है जिसकी वजह से आज हमें ही बेनिफिट हो रहा है. इसीलिए उस इंसान को रिवॉर्ड करना जरूरी है. इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. जब बच्चा कोई बहुत अच्छी चीज करता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, either we pat on his back or we reward him with a chocolate or something, whatever it is. So motivation is very necessary because motivation से ही इंसान next innovation पर पहुंचता है. There is called as an advancement, right? Second, we need to recognize the huge potential of young people to find the new and better solutions that support the transition to a sustainable future. You know that we are living in the world where, we listen these things: air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, many things. So now with the young people here, I do not mean with the numbers. These are just the numbers. 50 is just a number, 20 is just a number, and 5 year is also a number. Young people, I feel, are those people, are the creative minds who still think that yes, we can create, we are constructive, and we want to
give the value to the world. We want to add the value to the world, right? So these are the young people. So don't please take it as a young people like that. But yes, I would say the generation which is younger to me, the exposure that you got, that I didn't got. My son and likewise the same age of his kids, they were born in the environment of internet, the web, where they have found everything connected. But you just go back to the ancient times where the people have the culture of writing the letters, चिट्ठी लिखी जाती थी. आप याद करिए बॉलीवुड के उस टाइम के गाने जो चिट्ठियों पर होते थे एंड आज के उनके गाने which are totally internet based. So this is called innovation and हर दिन हो रहा है and लाखों innovation होते हैं. Important क्या है कि अब जो भी हमारे पास बचा हुआ है, the way our nature is, the way our I would say the land is, the soil is, or whatever the conditions we are having, we want the support from the young people to give us the sustainable future. Youth, today's youth means who are innovative, as I said, who are energetic and who are creative minds. They help to drive the changes. And we need to move for the sustainable future where we can sustain our lives and our future generations, because there will be scarcity of water, there will be scarcity of so many things, oil and so many naturally resources, they will deplete, right? So in this time, we need to think, and the responsibility is on the future generations to create or innovate something so that our future generations and your future generation, including mine, will have the sustainable future as bright as we are. 1 minute. So IP and youth, as I say, intellectual property and youth. So we need to have the youth-led innovation and creativity. Right? You know that you youths, I mean, you guys, all of you who are listening to me, because if someone is attending this seminar, I understand that they want to progress in life, they want to understand the new things, and they want to create their own things using the benefit of all that. So you guys are incredible. You have the untapped source of creativity. The only thing that you need is the right guidance, that whatever you are having, how you can benefit others as well as yourself, right? I know that this is the era where you are seeing every another day the name of new founders, the managing partners, the young guys who are creating, I would say, the startups and all. You are listening all these things. So this is called the wind of change that we are having. The important thing is that you guys not only have to build yourself, but you also have to make sure that in case at your home, in your family or friends, if there are people who are not aware of all those things, be it your grandmother, be it your mother, be it your father, be it your any of the elder people, they were not aware about the IP, but they are having the skills. So you can even help them also using their talents, using their skills, right? And secondly, the important thing is that we could say that these are the millennials or the Gen Z, they are the change makers. So you will create the change like the earlier generation has done when they were considered as the youth. You know, the important thing that I told you is today's world is that you are the digital natives. You are growing up in the connected world. So the most benefit that when we are growing in the connected world, can anyone tell me कि आप जब digital natives हो, I mean आपके चारों तरफ digital है, you are in a digital world, तो सबसे ज़्यादा benefit आपको किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा benefit आपको इस चीज़ का है कि आपको हर चीज़ का exposure है. दुनिया में कब कोई चीज़ कहाँ होती है, you get to know. There are socialized platforms, right, where you can see the social activity, you can share yours as well as you can see others also that they are doing, right? And you are like, you have internet, you have mobile phones, you have everything, where I think physical world is nowhere a bar. आपको जरूरत नहीं है US जाके और उस चीज को
अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उसको बताने की। द सेम वे अगर आपको अपनी कोई चीज शेयर करनी है, so you need not have to travel now, right? You can share it through these kind of softwares which are available. And I would say कि कोविड टाइम्स में अगर हमें किसी ने सेव किया है और इस वर्ल्ड को अगर इसकी इकोनॉमी को इतना डिस्ट्रप्ट होने मतलब डिस्ट्रक्ट होने से बचाया है, so that is the innovation only. Just imagine a COVID time 30 years or 40 years back will be क्या हमारे लिए मुमकिन था कि हम घर बैठ के काम कर पाते? Not possible. क्या आपने इससे पहले कभी एजुकेशन को या इस तरीके से स्टडीज की हैं? हमने नहीं की हैं, बट आई थिंक हमारा कोई भी काम नहीं रुका। हम ऑनलाइन ऑर्डर्स करने की हमारे पास फैसिलिटी थी, ऑनलाइन स्टडीज की फैसिलिटी थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस की फैसिलिटी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने 10 इयर्स में जितने स्पीकिंग सेशन नहीं दिए होंगे वो 2 इयर्स में उससे ज्यादा ही दिए हैं। द थिंग इज दैट माई ट्रेवलिंग टाइम हैज बीन, you know, it has not it has been saved, and I delivered more effective. So I would say that you guys have got the entrepreneurial, innovative and creative skills. The only thing is that you need to discover means which is already present. You need to just uncover it by getting the awareness of it and protect it. So let's see that how you can do. So I would say that all the youths here out there who are listening to me today, whatever your ambitions are, be it art, science or technology, because I understand that today's this agenda was towards the science. So be it art, science or technology, if you are creative, if you are innovative, then I would say that you need to understand the IP rights that will act as a backup and that will help you to make a difference. And I'm not saying anything which is groundless, because I have a full proof evidence which I got with me, and you will see that how the world has changed and the life that we are living. It is because of these kind of youths who were youths like you at their times. So let's discover that what IP has done for people like you and what IP can do for you. Okay, so as I told you that today our agenda is youth-led innovation and creativity. So the fresh perspectives, energy, curiosity, the best thing in you guys, I would say, is what I lacked years back was can-do attitude. You do not have any kind of hesitation to share and all those things, and that is your sword. You know, your hunger, you always ask the question why it is so, because you always put your reasonability and a logic, and that help you to reshape your approaches. But at the same time, you need to understand about the intellectual property rights. Let's see how IP rights can support your goals, how IP rights help transform your ideas into reality, be it any idea. I just want to share with you, today morning I got this from a kid. So basically, kid has prepared a book of stories with my sticky notes. Okay, at the back of it, he has made a logo, and he called this logo Flying Crow, because there is a crow inside that I don't know whether you can see on me or not. And on every page, he has written something. And the most important thing is, kid asked me to put it on Amazon and say that please put it on Amazon so that someone can buy. So now this kind of attitude, I mean this kind of creativity, every kid possesses, but in a different form. We need to make them understand how to protect. Now it's a time that the parents or the grandparents or the brothers and the sisters, elders, younger, whosoever. Now it's not a time that you always say that please अच्छे से पढ़ाई करो, बड़े हो जाओ, फिर एक घर खरीदो और गाड़ी खरीदो, कुछ लैंड खरीदो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो. No, you need to say that before buying, create something. You know, in life there is very important that you create something. Creative word जो निकला है वो create से निकला है. एक चीज होता है making and buying, वो आप tangible asset दोगे and आप tangible खरीदोगे. But just imagine if you create something. Create has a power, because when you create something, you can build something over it. So I would say that from today, आज का एजेंडा ये होना चाहिए
कि हम बच्चों को ही बचपन से, जब भी कोई बच्चा अगर स्टोरी बनाता है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं ही इज लाइंग, डोंट से ही इज लाइंग एंड डोंट टेक हिम टू अ डॉक्टर, टेक हिम टू एन आईपी अटॉर्नी, बिकॉज वो बता सकते हैं कि ही कैन बी अ वेरी गुड स्टोरी राइटर इन मूवीज और एनीवेयर, right? But and you have seen all over, I would say, on television and all, you see the small kids, they dance so well, they sing so well. I mean, I just get shocked when I see them, how talented they are. But just talent will not help them, because this era is a talent pool full of talent. आप talented, आपके लेफ्ट साइड में टैलेंट, आपके राइट साइड में टैलेंट, आपके आगे टैलेंट, आपके पीछे टैलेंट, बट इन सब टैलेंट्स के बीच में आप खुद को कैसे बताओगे कि आपका जो टैलेंट है वो अलग है, या उसके ऊपर आप अपना बिजनेस कैसे बनाओगे? बिकॉज टुडे द पीपल, दे आर मूविंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स मोर, दे वांट टू फाउंड अ कंपनी, राइट? तो जब सब एक ही दौड़ में चले जाएंगे तो उसमें से बेस्ट या उसमें से अलग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से अलग होने के लिए आपका जो भी आइडिया है, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, या जो भी आपका एक बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, यू नो, सर्विस में भी कितना एक बड़ा चेंज आया, एज यू से प्रोडक्ट में, इफ यू सी पैकेजिंग, आप देखो कितनी अलग अलग तरह की पैकेजिंग। तो इंपॉर्टेंट है कि आपका एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसको कोई कॉपी न करे, उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं। ये वही एक्शंस होते हैं जब हम हमारा नया घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो हमें करना होता है। द सेम हैपेंस हियर, राइट? सो आज से हमें ये प्रॉमिस करना है कि चेंज तभी पॉसिबल है जब हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी उतनी ही आई वुड से एक ऑनर या रिस्पेक्ट दे जितना कि हम टेंजिबल प्रॉपर्टी को देते हैं। सो हाउ दे क्रिएट्स जॉब फॉर यू, how they make a positive impact on the world around you with IP rights, how you have access to some of the key tools you need to advance your ambitions, like the artificial intelligence, it is one of them. How IP can support your ambitions to build a better future for you as well as for us. So now, how you gain better understanding of the tools of the IP system. So these all are the tools of the IP system, which Dr. Taneja has already covered very effectively, I would say. So trademarks, design rights, copyrights, patents, plant variety rights, geographical indication. So how they all can support your ambition to build a better future. And secondly, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर आपका एक particular industry specific है, कि आप मान लीजिए pharma products बनाते हैं, तो आपके लिए सिर्फ पेटेंट ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, you can cover, you can create a portfolio of your product or the services by using all of them, but you need to have a right guidance, you need to get the right guidance. Like trademark, व्यापार चिन्ह, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं वो ट्रेडमार्क्स। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका जिंगल हो सकता है, शेप हो सकता है, स्मेल हो सकता है, कलर हो सकता है, पैटर्न्स हो सकता है, लाइंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। डिजाइन राइट, यानी कि सिर्फ एस्थेटिक लुक को जो कवर करे, फंक्शनिंग से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द सेम वे, नॉट एवरीवन कैन गो फॉर द इनोवेशन। तो मान लीजिए अगर किसी के प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन है ही नहीं, इट्स अ जेनेरिक प्रोडक्ट, लेकिन आप उसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो? उसको डिजाइन दे दीजिए। इट इज सेम वे दैट we all are the human beings, but we have been given the name. So the name is our trademark. I would say people identify us with the name. And design, you would say, the way we are, our physical appearance is our design. And the functionality and the intellect, you can consider it as a patent. Patent means something which is related to your invention or innovation or a solution to a problem. I mean, it is just for correlation to understand. Copyright. Copyright यानी कि ऐसी कोई भी आर्टिस्टिक चीज, वो ऐप हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, पेंटिंग्स हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, पोएम्स हो सकता है, उसको एक रूप देना, राइट? Where there is an originality of expression and there is a way to express it. For example, मैं जो आज आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये वीडियो है, इसका एक वर्जन ये हो सकता है कि मैं सिर्फ ऑडियो में दूं, एंड इसका थर्ड वर्जन ये हो सकता है कि मैं इसको राइट अप करके पब्लिश कर दूं,
इसका फोर्थ वर्जन ये हो सकता है कि मैं इस पे एक छोटी सी क्लिप तैयार कर दूं. फिफ्थ वर्जन ये हो सकता है कि मैं इस पे एक मूवी बना दूं. That understanding of IP rights. So these are the different kind of, but everywhere you will see there is an originality of expression, but the fixation of medium is different. कहीं orally है, कहीं video है, I mean कहीं graphics है. So this is how. Plant variety. So it's not only कि सिर्फ technology तक ही IP rights हैं. If you create a new variety of plants, you will be rewarded with the another kind of right that is called as a plant variety rights. मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. लेस चिप्स आप सबने खाया होगा. आप उस छोटू से पैकेट को देखिएगा कभी, जो मिनिमम उसका प्राइस आता है, आई थिंक 5 रुपीज का एक पैकेट आता है, छोटा सा स्मॉल चिप्स पैकेट. लेस उसका नाम दिया है. लेस का कहीं भी मीनिंग चिप्स नहीं होता है, लेकिन हम सबको, अगर आज मैंने आपको लेस बोला, आपको सबको पता है शी इज टॉकिंग अबाउट द चिप्स. सो दैट इज इट्स ट्रेडमार्क. इट कम्स इन different colors packaging. That is also a trademark. The way it appear is the design mark. चिप्स की जो लाइंस रहती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा एक नेटवर्किंग टाइप होती है, प्रेस क्रॉस इसको बोलते हैं, जाली जाली. That is design. You know the process by which it is made and the seasoning over it protected by the patent or the trade secret. And सबसे important, जिस आलू से वो लेस बनता है वो प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन मिला हुआ है. उस आलू की खासियत ये है कि उसमें 5% कम मॉइस्चर होता है एज कंपेयर टू द अदर पोटैटो. सो यू सी, फॉर अ 5 rupee पैकेट ऑफ लेस देयर आर मोर देन 5 kind of IPs and we are not aware about that. And that is the only reason that since उन्होंने उनका पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार किया है where they are protecting every feature of their product, that's why they don't have any competitor. People come, people go, but standing like them, no. Geographical indication, trade secret. Now, let's have a closer look of IPR role. So I would say that we need, the IP has a very strong role. In case if you protect the IP, our nation as a whole, if they take interest in protecting the IP, the first thing that they get is the recognition, right? And the most important thing is that just protecting IP will not help. Our government, the system, they need to think, they need to support us in every way. And I think they are supporting. Like today, we are having the IP awareness program like this. This is a kind of support. But the important is that you guys should take the benefit out of it. You need to extract the benefit out of it. It's not like just, a session is there and you need to attend. No. Take out the best from that session so that you can be an inventor, a creator, and the entrepreneur. So I would say that consider yourself for 1 hour that you are the innovators, you are the creators, and you are the entrepreneurs of tomorrow, right? And with your creativity and ingenuity, like, we would like to extract the best output to give this world the best innovation. So I would say that generation today, the youth today, they are the very excited generation, and they will be gonna make the change makers. So now let's see that how the policies and what framework are available to you guys, right? And how you can change your lives as well as others. So what are the benefits of IPR to the developing nation like India? So I would say that IPR generates substantial economic activity, employment, growth in developing as well as developed countries. You see, there are so many apps today available. Someone has, two guys, they start a new app where they deliver the groceries in 1 minute or 2 minutes or 3 minutes or 9 minutes. Like, you have available everything on phone. But you just imagine these 2 guys in a room, they created an app, but they have given employment to how many people? To at least 100 people if they want to cover a big area. IP-based material like the copyrights, trademarks, patents, plant variety, etc. developed in the developing countries have a substantial export potential. If you do not create anything, then your export is not possible. Then in that case, what you will take, you will import something.
And one thing you should always think from the economic point of view is because property itself means economy, right? So you have to understand कि अगर आप अपनी कंट्री में कुछ भी नहीं बनाएंगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट का क्या होगा? आपके पास जो एक्सपोर्ट का एक चंक ऑफ मनी जो आता है वो नहीं आएगा. देन दैट मीन्स आपकी कंट्री के जीडीपी में आपके एक्सपोर्ट का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. यू नो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, आई डोंट वांट टू टेक नेम हियर, जो कुछ भी नहीं बनाते हैं, राइट? एंड देयर आर कंट्रीज जिनके पास नेचुरल सोर्सेस इतने ज्यादा है कि वो उनकी इकोनॉमी पूरी उनके ऊपर बेस्ड है. बट जस्ट इमेजिन आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन देयर विल बी नो नेचुरल रिसोर्स, तो वो कैसे उससे कोप अप करेंगे? So the important is that we need to create the IP based material so that we can export it. मैंने एक पढ़ा था, उसमें मुझे पता चला कि चाइल्ड एंड मर्कोजर, these are the countries जहां पर एक्सपोर्ट, कॉपीराइट रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में 1 to 2% का increase हुआ, and that contributes to their GDP. So just imagine, it's not the tangible which adds to the GDP. This can also add to the GDP. इंडिया बीइंग अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, इसके बारे में सोच सकते हैं बिकॉज ऑफ प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन आ गया है. हमारे फार्मर्स को भी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर वो कुछ ऐसा बनाते हैं, या उन फार्मर्स की नेक्स्ट जनरेशन हु आर लाइक अस, right, they need to implement the technologies in their farming, as well as they need to get the awareness that how they can protect their crops, plant varieties with the proper IP protection. There is a need. आप लोगों के भी एक डिपार्टमेंट होता है फार्मा में, फार्माकोग्नोसी, where you study about the medicinal plants. Try something new. Go there and try something new, and you will see and get it protected with the plant variety protection. As I told you, अगर आप IP अपने ही कंट्री में क्रिएट करते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है एंड इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया. So as I say, जो भी पॉलिसी आते हैं उस पॉलिसी के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है. मेक इन इंडिया हम सब समझते हैं, सुनते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब इंडिया में ही हम बनाएंगे तो दैट विल अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट प्रमोट्स आवर R&D, इट प्रमोट्स द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इंडिया विल स्टैंड आउट एज अ पावरफुल नेशन. Right? It drives the development as well as economic growth. So we have to now push ourselves. Copyright related industry. I would like to name an industry जो हम सब जानते हैं, which is common, Bollywood. So I would say that Bollywood also has a good contribution, you know, because it's not just that they broadcast the movies in India. अगर दुबई में ब्रॉडकास्ट करना है उसके अलग राइट्स होते हैं, उसका अलग आपका रॉयल्टी होता है. इफ यू वांट टू लॉन्च द मूवी समवेयर एल्स, इट विल हैव द अनदर राइट्स. सो दैट आल्सो जनरेट्स सब्सटेंशियल जीडीपी दैट गिव्स द एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन. आई मीन मुंबई इज, मायानगरी इज फेमस फॉर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन in terms of employment, right? Patent dependent sectors जैसे कि, और I would rather say patent intensive industries like the pharmaceuticals, chemicals, aerospace, motor vehicles, electrical engineering, they play a similarly important role in overall economy. So since you guys are coming from the pharmaceutical and chemical background, think about it. Just imagine कि अगर कोरोना क्राइसिस में we would be able to create something, although it was like उस time it was like a pandemic, so you cannot like have the rights which can hamper others from using it. But that was a time where we have to think, can we create something? And yes, India has contributed as well. It promotes innovation. It helps firms monetize their innovations and grow. It helps the small and medium enterprises because there is a proper, I would say, benefit given to the small and medium enterprise. Whenever they apply for the IP, they have been given some kind of concession in the government fee. And it benefits the consumers and the society. Just imagine कि अगर कोई innovation नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपके पास सिर्फ एक ही कॉलेज होता है जिसमें आप सब जा रहे होते हैं, आप एक ही तरीके की
व्हीट फ्लोर यूज कर रहे होते हैं, आप एक ही तरीके का राइस यूज कर रहे होते हैं, एक ही तरीके की दाल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको फिर से वही दाल या राइस खाना है जो आपको बहुत पसंद आया, आई मीन फ्रॉम द प्रोडक्ट ग्रोसरी स्टोर, आप कंफ्यूज्ड होते बिकॉज उस पर कोई लेबल ही नहीं होता. लाइक यू रिमेम्बर किराना की दुकान पहले वाली जहाँ पे वो हर चीज ओपन में देते थे, बट टुडे यू हैव अ ब्रांड, सो यू विल अगेन बाय द सेम क्वालिटी. अदरवाइज तो इतना कंफ्यूजन है क्योंकि इतने ब्रांड्स हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे वही चाहिए जो मैंने पहले यूज किया था एंड आई एम हैप्पी विद दैट. दैट क्रिएट्स द गुडविल. सो ट्रेडमार्क इज इंपॉर्टेंट. या ये बहुत एज आई वुड से आपने पुराने पैलेसेस या जो भी अपनी लाइफ में किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर आप गए हो तो आपने इस तरीके का देखा होगा कि पुराने जो किले रहते थे वो बीच में रहते थे एंड चारों तरफ या तो बहुत पानी रहता था या बहुत डेप्थ में एक तरीके का एक फेंसिंग होगी दैट द इन्वेडर्स शुड नॉट कम. द सेम वे हमारी आईपी होती है. आई मीन आईपी गिव्स यू दिस प्रोटेक्शन. तो ये आप हैं, दिस इज यू एंड दिस इज योर माइंड, योर क्रिएशंस. Now you have created something. Now this is something which protects you. इसलिए इसको बोलते हैं moat, IP moat. So you need to create your IP moat. Now how to build an IP portfolio? We will just go through it in a fast way. So as I told you, जैसे कि आप stocks में, mutual funds में, real estate में portfolio अपना build करते हैं, the same way you need to have a portfolio approach to IP, right? Like एक ही product पे trademark, patent, design, copyright in a multiple markets of interest. So IP is an investment or expense. ये मैं आपसे पूछूंगी at the end of this session. Yes, what is very important is when should this investment be made? So I will always say that take the help of the expert in the field. They will guide you in a better way. The same way for investment, you also take advice from the person who is having the field knowledge. Same way you need to do the same. So for example, education. So as you know that this IIM, IIT, everyone knows. But for example, tomorrow if GG Scope wants to create their own merchandise that hum sab, including me, is wearing the t-shirt having the GG Scope. So for that, आपको क्या build करना पड़ेगा? You need to build a reputation and a branding. Who builds that reputation and branding? Your building? No. Infrastructure? Not necessarily. Who? Your alumni. जो बच्चे यहाँ से आपसे निकले, आपके seniors, वो कहाँ placed हैं? तो सबसे पहले जिस तरीके से एक बच्चा जब कुछ करता है तो देखा जाता है who was the mother and father. The same way when a student accomplished something or placed in a very good way, or he I would say acquires success, सबसे पहले देखा जाता है ये कहाँ का प्रोडक्ट है, यानी किस इंस्टीट्यूशन से निकला हुआ है. That's why IIM, IIT, MIT, Yale, Harvard, इन सबको बहुत ज्यादा रेप्यूटेड माना जाता है. हम में से कोई भी नहीं जानता है इनकी बिल्डिंग कैसी दिखती है. I mean, not me in fact, but the first thing that came is the people who come out from these universities. राइट. सो आप कैसे कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में रहकर? ये वीडियोस बनाइए, टेक्स्ट बुक लिखिए, आई मीन बुक्स लिखिए, उन पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन लीजिए. यू आर कमिंग फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, हर दिन जब केमिस्ट्री की, मेडिसिनल केमिस्ट्री के उसके लिए जाते हैं, कॉग्नोसिस के उसमें जाते हैं, डिस्कवर समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग. कोई अगर टैबलेट में फॉर्म अवेलेबल है तो उसको कैप्सूल में कैसे बनाना है, एक इनोवेटिव अप्रोच देखिए. और ये देखिए कि जो प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम सोल्यूशन कैसे डिलीवर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ you, since you are pursuing a degree which is technical, right? So you have the chances for overall protection of IPR. So this is how you can do the things. Discover, uncover what is available, use your mind, execute it, and go to the final result and protect IP, protect it with IP. Pharmaceuticals, you know, कि pharmaceutical में, for example, this is Dicomet Trio. This Dicomet Trio is its trade name, right? व्यापार चिन्ह हो गया. इसमें composition क्या है? Metformin, Glimepiride and Voglibose से बना हुआ है. तो मान लीजिए अगर इसके ऊपर it's an invention, तो इस पर क्या मिलेगा? पेटेंट. तो ठीक है.
ये जो आउटर पैकेजिंग है इसको आप किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? डिजाइन से। ग्लाइकोमेट को किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ट्रेडमार्क से। एंड इसके पीछे जो लेबलिंग इंफॉर्मेशन होती है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, डायरेक्शंस ऑफ यूज एंड एवरीथिंग, उसके एंड में आप देखेंगे ऑल द राइट्स प्रोटेक्टेड कॉपीराइट से. So a single product can have so many things, and the same as I told you that the active ingredient, method of manufacturing them, formulation and drug combination, they are protected by patent. The brand name, they can be protected with the trademark, right? And the actual industrial and commercial process and the formulas, they can be protected with the trade secrets. So now I want to share with you the sale of Zomelis brand by Novartis. ये एक बहुत ही important case है, and मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें, because बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रेडमार्क का कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो I would like to tell you कि दिसंबर 2019 में कुछ दिन पहले ही जब विल्डाग्लिप्टिन, right, it's coming from the gliptin class, डायबिटीज में यूज होते हैं ये ड्रग्स, जो कि नोवार्टिस का प्रोडक्ट था, और नोवार्टिस ने इस विल्डाग्लिप्टिन का नाम लिखा था जोमेलिस. तो जब इनका कंपाउंड पेटेंट यानी कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, किस तरीके से उन्होंने बनाया है, राइट, उसको जो पेटेंट प्रोटेक्ट करता था, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. सो उसको बोलते हैं कंपाउंड पेटेंट. कंपाउंड है, राइट, तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है. तो जिस दिन वो एक्सपायर होने वाला था उसके कुछ दिन पहले नोवार्टिस ने ये बताया कि वी आर लाइक ओपन टू सेल आवर ब्रांड नेम जोमेलिस. जोमेलिस को एज अ ब्रांड वो कर रहे थे. सो यू वुड से कि जोमेलिस ने 2018 में जितने सेल्स किए थे, इट वाज लाइक क्लोज टू 16 करोड़. देयर इज अ डिस्क्लेमर, नंबर्स में चेंज हो सकता है, इट्स जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल, बट यस, एक्चुअल नंबर्स में कुछ शायद प्लस माइनस हो सकता है. एंड जो ट्रेडमार्क राइट्स थे वो उन्होंने इतने में सेल किया है, जस्ट द जोमेलिस ब्रांड, एंड वो भी कंपाउंड पेटेंट एक्सपायर. व्हाई दे डिड इट? बिकॉज उनको पता था कि जैसे ही कंपाउंड पेटेंट एक्सपायर होगा, द जेनेरिक विल लॉन्च देयर प्रोडक्ट एंड दे विल लॉन्च इट अंडर सम नेम. सो व्हाई नॉट टू put on sale our own brand, which is Zomelis. तो आप ये सोचिए, एक ट्रेडमार्क को लेने में, मतलब फ्रॉम फाइलिंग टिल रजिस्ट्रेशन, और अगर उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं आता है, मिनिमम से मिनिमम, आई मीन मैं आपको बताती हूँ 25 to 30,000 का आपको एक्सपेंस आता है. दिस इज समथिंग आई एम टेकिंग एन वेरी एवरेज फिगर. कुछ फर्म्स ज्यादा लेती हैं, कुछ कम लेती है. सो द इज, एंड दैट इज फॉर 10 years, राइट? सो 25 to 30,000. बट यू सी कि sales under the Zomelis brand is 16 CR, and how much they consider for their trademark when they are selling it, put on sell, is 93 crores. So you see कि उनका CAGR total 77%, which is like, I would say, अभी तक का ये biggest brand था जो इतने में उन्होंने सेल किया. So this is how you can take benefit over the names also. That's why trademark is very important. I mean, if you are opening a salon, trademark is important. If you are opening a cafe, trademark is important. If you are opening a laundry service, trademark is important. In fact, I have also filed my company's name and got it registered the day I registered my company. So it is important, right? Now, individuals. All of you have heard about the person Javed Habib. क्या करते हैं वो? He is an hair stylist. But just imagine, जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हेयर कटर से हेयर स्टाइलिस्ट तक का सफर बिना आईपी के पॉसिबल नहीं था. आई डोंट नो, टुडे वी डोंट नो वेयर दिस मैन सिट्स और really he cuts the hair or not, but we know that there are salons with the name of Javed Habib who cuts them. So important is कि वो इंसान इनमें से किसी भी सलून में नहीं है, but उसके नाम से we spend money like anything, right? If you want to take a bat, like अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े वो हैं एंड आप, तो आप वो बैट लेना ज्यादा पसंद करेंगे जिस पे तेंदुलकर का सिग्नेचर है, और मे बी धोनी का या कोई भी है. सो हियर आई जस्ट टुक इट एज एन एग्जाम्पल. लेट श्री लता मंगेशकर जी, जो अब यहाँ नहीं है, लेकिन डू यू नो, वो जब यूथ थी आपकी तरह, तब से उन्होंने गाना शुरू किया, एंड शी हैज संग सो मेनी सॉन्ग्स कि उन सबका उनको रॉयल्टी आता था, एंड आफ्टर हर ऑल्सो. So this is the way you can create. But do you think singers तो बहुत होते हैं, but क्या सब लोग इसमें IP में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते. So the thing is, first you create and then you protect.
Small and local business. So these are very small and local business, but they also invested in IP. Restaurant and hospitality. So here, why I'm sharing all these examples, that you pick any industry, I would say a food industry उठा लीजिए, FMCG उठा लीजिए, pharmaceutical उठा लीजिए, education उठा लीजिए, small business उठा लीजिए, app makers जो होते हैं उनको उठा लीजिए. Everyone, they have invested in their IP, and that is why it has safeguarded. They have created a moat. जो मैंने आपको बताया था, they have created a moat. That's why you know what, replicating the McD's burger might not be very difficult, but we cannot do because they have the IP rights, which stops us from doing it. किसी का कॉपी बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कौन हमें रोकता है? वो आईपी राइट्स रोकते हैं, वो ओनरशिप के पेपर्स रोकते हैं. इट इज सेम वे कि किसी के घर में आपको ट्रेसपास करना है, तो आप जाकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा घर है. Why? Because that person has the papers, the ownership papers. So when you are so much careful about your investment, the tangible assets जिसको आप secure करके रखते हैं, gold को बैंक में रखेंगे, लैंड को प्रॉपर पेपर्स के लिए रखेंगे, टाइटल क्लियर है या नहीं, ये सब देखते हैं, then why not to your own creativity? उसको भी तो जरूरत है एक प्रोटेक्शन की, that you need to give them. Apps and software. Can you see any kind of something like Facebook? No. Why? Can't people create something like that? We can create something like that because the idea is open now and we know how to create, and there are so many computer engineers which can do. But Facebook has created a proper protection which stops us. That's why we do. Now, success stories of youths when they were youth, right? So let's see. We will take a very fast track on that. We will go on fast track. So Microsoft's copyright demands, that was actually done by the Bill Gates. Earlier, there was nothing called copyright, but Bill Gates, when he was working with his colleague, Paul Allen, they developed a basic software, which was the first one, the Altair 8800 computer. At that time, there was no legal protection for the software. So he was the man who took the step and he asked the government to give a right which can protect its software. Because you know what? Patent, trademark, copyright, ये सब कहाँ से आए? They are coming from the conventions. अगर आपने पढ़े हो, Paris Convention, Berne Convention and all. I'm so sorry. लेकिन आप ये देखिए उस टाइम से, like Paris Convention came in 1883. Today it's 2022. 1883 से 2022 तक कितने डेवलपमेंट्स हुए? Enormous. क्या हम पहले सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानते थे? नहीं. हम कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते थे? नहीं. तो उस टाइम जो आईपी का रेजिम में क्रिएट किया था वो उस टाइम के हिसाब से था, एंड यस डेफिनेटली उन्होंने फोर्सी भी किया था. बट जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को हमें आईपी के प्रोविजंस में डालना होता है, एंड दैट्स व्हाई अमेंडमेंट्स केम. लाइक हमारा खुद का इंडियन पेटेंट सिस्टम देख लीजिए. Earlier we used to give only protection to the product patents, but we feel the need that process को भी तो patent मिलना चाहिए ना. So the process patent came, and that's why we have signed the TRIPS agreement. What is TRIPS? Trade related aspects of intellectual property right. So जब intellectual property rights का export and import होगा, it is a trading, तब हम किस तरीके से उसको देखेंगे? That was given by WTO. So this is how. Second, Google's page rank patent, जिसको हम सब यूज करते हैं, but it is also a protected thing, right? Javed Habib's franchising, as I told you. यहाँ पर see, there are so many examples that I could have taken, but I took this especially because hair cutting को, I mean, जिनको हम usually हमारे यहाँ पर एक अलग उसमें रीजनल लैंग्वेज में एक नाम देते हैं. आपने हर तरीके के देखे होंगे. You just imagine how this man has created, an empire with just one skill, which is like very common. But he made himself special. That's what my point is. And that's why I took his example. See, singing karna, I would say not everyone's. अगर आज मैं चाहूँ मैं singing कर लूँ, मैं नहीं कर सकती. उसके लिए एक अच्छी voice, एक texture, बहुत चीजों की जरूरत होती है. But you see that he has learned a skill. ये learn की है, skill learn की है.
बट इतने लोगों में he made himself a very different, a someone कि जिसको सब जानते हैं. ये बहुत important है. Among the common, there is an uncommon. McDonald's brand, you know, they have protected everything, their recipe's name. I mean, this M, the way they do. एंड अब आप पूछेंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि कल को अगर आप चाहें कि मैं यमुनानगर में एक मैकडी का ओपन करना चाहता हूं, आप उनसे लाइसेंस लेंगे तो वो आपसे पूछेंगे आपको क्या क्या रखना है. क्या आपको हमारा ये मैस्कट चाहिए? मैस्कट यानी उनका वो जो बाहर एक रहता है व्हिच यू कॉल, तो क्या वो चाहिए? अगर वो चाहिए तो उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा. आपको मैकडी का कितने साइज में कितनी बार लिखना है उसका एक अलग होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट, फॉर एवरी पेनी यू आर पेइंग, you are taking the money back, but first you protect and safeguard properly. संदूर लंबनी एम्ब्रॉयडरी, आई वुड नॉट से कि अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से निकले हैं तो ही आपके लिए आईपी है. नहीं, आईपी इज फॉर एवरीवन irrespective, because जब हम फाइलिंग करते हैं हमसे कोई नहीं पूछता कि हमने क्या डिग्रीज लिए हैं. सो इट इज फॉर एवरीवन. अगर आप कोई स्किल जानते हैं, बीट एम्ब्रॉयडरी और बीट एनीथिंग, यू कैन गेट इट प्रोटेक्टेड, राइट? सो दिस इज लाइक द जोग्राफिकल इंडिकेशन. कर्नाटका में एक जगह है बेलारी, वहां पर ये इस तरीके का काम होता है. रूरल वुमेन का आई वुड से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली. दुम्बरा मैट्स ये श्रीलंका में बनते हैं इस तरीके के स्पेशलाइज. आई वुड से जिस तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट तरीके की साड़ीज देखते हैं जो कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बनती हैं, बिकॉज हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग होती है. तो वहां पर जो सिल्क या वहां पर अगर कोई कॉटन हो रहा है तो उस जो भी वो हो रहा है सिल्क या कॉटन उग रहा है वहां पर, उसकी ज्योग्राफी का उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है. एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन an important IP called as geographical indication, like Nashik ke grapes, आपके mangoes, then you would say Calcutta की sarees, Chennai sarees, आपका Mumbai, not Mumbai, there is a name, Pantani saree, and all those things. So that's why it has. Now this is something I would like to tell you. I want to like to share the story of लिज्जत पापड़. एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज से बहुत साल पहले कुछ लेडीज ने 7 लेडीज ने मिलकर, जो कि पढ़ भी नहीं सकते थे, उन्होंने इसको क्रिएट किया. तो आप ये सोचिए वो उनके यूथ में थी जब उन्होंने क्रिएट किया था. दे वर नॉट हैविंग एनी डिग्रीज ऑन द पेपर्स बट दे क्रिएटेड इट. तो मैं आपको इसकी स्टोरी इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने मेरे बचपन में लिज्जत पापड़ का एड देखा है, मैस्केट भी देखा है जिसमें एक बनी आता था खरगोश के फॉर्म में. सो दिस कोऑपरेटिव इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन वुमेन. आप सब जानते हैं इसका नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से इसको जानते हैं. एंड बेसिकली जो लो इनकम फीमेल वर्कर्स थी उनके डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने ये सब किया. ये स्टैट्स जो मैं दे रही हूँ वो 2 साल पहले के हैं, but more than 40,000 members and they have 62 branches across the 17 states of the Republic of India. And इन्होंने अपने trademarks and IP protection सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन्होंने दूसरी कंट्रीज में भी करवाए. इसलिए इनको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको रिपोर्ट किया हुआ है. So it was created in 1959. तो आप हिस्ट्री देखिए 1959. Today we are in 2022. सिर्फ 80 रुपीज में की इनिशियल कैपिटल में दे स्टार्टेड दिस थिंग. 7 नॉन रीडिंग बट स्किल्ड वुमेन. स्किल्ड इन व्हाट? दे आर स्किल्ड इन मेकिंग पापड्स, राइट? हु न्यू हाउ टू मेक पापड़ बेस्ड डिशेस फ्रॉम साउथ मुंबई. उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने बनाए, उन्होंने सेल किया. उनको लगा कि लोगों को पसंद आ रहा है तो उन्होंने लोकल मर्चेंट के लिए बनाना शुरू किया. लोकल मर्चेंट यानी कि क्योंकि उनके पास एक्सपोजर ज्यादा होता है, जो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है जो इनके पास नहीं थी. एंड इनिशियल आउटपुट 4 पैकेट्स थे जो 7 लेडीज पढ़ के बनाती थी जो नॉन रीडिंग थी, बट उनमें स्किल था ना. सो दे लेवरेज ऑन द स्किल. इंक्रीज कैपेसिटी 25 मेंबर्स से 7 to 25 हो गए 3 months में. उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कुछ इक्विपमेंट्स और मंगवाए, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव किया, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पापड़ बनाए.
डेफिनेटली वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है बिकॉज हम अभी भी यूज करते हैं, एंड पापड़ का मतलब हम लिज्जत समझते हैं. इम्प्रूव, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज को, लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूव किया, उसमें क्वालिटी लेकर आए. उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया कुछ प्रिंसिपल्स पे, म्यूचुअल अफेक्शन एंड कंसर्न, डिवोशन, कलेक्टिव. आप ये सोचिए इन सब चीजों का एक्चुअली कोई रोल नहीं है आईपी से, बट यहाँ समझने वाली बात ये है कि दोज वर 7 non-reading women, but they believed in the principles of all this. This is very important. So when we are reading, when we are educated, when we have opportunity, when we have exposure, why not we? If they can create, we will definitely create. All women membership members, they refer to as sisters, right? She is the one जो उनमें से थी एक. So she was one of the 7 founders of Legit Papad. The first branch outside Mumbai in 1968. तो आप अगर ईयर देखें, so it was 1959 to 1968, मात्र 9 साल में. They registered formally and legally as society. They led the way for favorable financing, including the low interest bank system and loans उन्होंने उसी में किया. And 2013 का reported उनका turnover ये था. I would like to say 80 rupees के investments is starting and the turnover is this. 3 main divisions उनके, अब उन्होंने उसको division कर दिया. उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट किया जो कि नीडिंग का काम करते हैं, डो का, एनरोल्ड इनटू पापड्स. पैकेजिंग यूनिट किया एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट. यू सी दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम आल्सो इनके प्रोडक्ट लाइन से. और आज सिर्फ लिज्जत पापड़ ही नहीं है, they have commercialized their papads in 14 varieties. They have spices, खाकरा, मसाला, बड़ी, wheat, आटा, जो भी आप यूज करते हैं, match sticks, incense sticks यानी अगरबत्ती, washing detergents, many things they are developing. And for everything, उनका सासा जो है, so for everything they have branded it, they have commercialized it. Since they have protected it, इसीलिए उनके सामने कोई और प्लेयर इतना जल्दी नहीं आ पाया. उनके स्लोगन है a unique organization of women by women for women, symbol of women's power, just सासा. I hope कभी YouTube पे सर्च कीजिएगा, इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस गाना था. This mascot, this rabbit used to come on the DD1 national channel. मैं भी देखा करती थी. This was the man who used to come with this and they have advertised. So you imagine that those women, I'm definitely sure उनको किसी ने गाइड किया होगा, but उन्होंने अवेयरनेस को, अपनी अवेयरनेस ली जितना वो ले सकते थे, and they were like पॉजिटिव थे आगे बढ़ने के लिए. This is very important. So you see उन्होंने mascot किया. You know, these days the mascots are in trend, but at that time they have believed in it. ये पिंक बनी रैबिट आता था इन पापड़ में, and there was a slogan Tarampuram, something like that. So you see everything they have protected, and not in India but outside also. At that time they were having 70 registered trademarks, including all these, right, including this symbol also. And so they have registered their device mark in India as well as US. So device mark का मतलब ये होता है कि जहाँ पर नाम और इमेज दोनों को क्लब कर दिया जाए, that's called the device mark. So Nike है और Nike के नीचे अगर वो टिक का निशान है, that is the device mark. So this is how. Now I would like to ask you, is IP a shield or a sword? Shield है क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Sword है क्योंकि अगर हमको किसी ने इन्फ्रिंज किया, then it will act as a sword. So it can be used to prevent competitors from the piggy banking on the organization efforts. So I want valuable asset का मतलब सिर्फ tangible नहीं होता है. सबसे valuable asset अगर इस दुनिया में कुछ भी है, that is the mind, human mind. We are, I would say, very fortunate species on this earth who have mind and who have got the, who are blessed to express that in the form of words, actions, and so many things. So I would say that we have to create and then protect and to use our IP as a shield or a sword to benefit society as well as to us. Now, as I was saying, कि youth and IP ये तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हमें वो environment नहीं मिले, वो conducive environment नहीं मिले जो कि हमें मिलना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं.
So I'm just taking only one policy because we don't have time. We have a time constraint. And so it is a role of IP in Atmanirbhar Bharat. You know, Atmanirbhar, as I told you, that's why I put that slide ki exports क्यों होने चाहिए. Because अगर export हम कोई चीज करेंगे तो export से एक particular पैसा आता है. Importantly क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में, आज अगर आपका भी बिजनेस है, अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में, मान लीजिए गारमेंट के बिजनेस में, ठीक है, और एक आप मान लीजिए फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में, अगर आप अपने गुड्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, it is something I would not say it is export or import, but it is something you need to understand. I would take an example, a very normal example. For example, अगर आप में से कुछ लोग अभी अगर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या आप कहीं और से आकर यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको खाना अगर नहीं बनाना आता तो आप क्या करेंगे? आप बाहर से खाना खाएंगे, राइट? यू कैन कंसिडर कि आप जब बाहर से खाना खाएंगे तो यू नीड टू पे इट. अच्छा, डेफिनेटली घर में खाना बनाने में जितना आपको लगता है एक्सपेंस, वो बाहर से मंगवाने में तो कम ही होता है. तो द सेम थिंग, जब हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम ही खुद अपना बना लेंगे तो हमारा पैसा विद इन हमारी कंट्री तो रहेगा ही, प्लस हमारे पास बाहर से भी पैसा आएगा. एक्सपोर्ट मनी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके एक्सचेंज में आएगा, न कि हमें एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे हमें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा, बट ऑल्सो वी गेट द मनी हम ला सकते हैं, जिससे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का जितना एक इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो काफी हद तक हो जाएगा, एंड वी विल पुट दैट मनी इन द डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई इफ यू सी कोविड क्राइसिस में, आई पर्टिकुलरली वर्कड ऑन द कोविड क्राइसिस, और तब मुझे लगा कि कोविड क्राइसिस में इट रिमाइंडेड द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री. उन्होंने ओवर रिलायंस कर लिया था चाइनीज एपीआई के इंपोर्ट्स पर. ज्यादातर हमारी जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है वो ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करती है एपीआई, यहाँ पर नहीं बनाते हैं. द रीजन इज नॉट कि हम नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, बट द कॉस्टिंग और क्वालिटी वो लोग हमें दे पाते हैं, वो हम यहाँ पर उतनी कॉस्ट में नहीं बना पाते. तो हमें एक्चुअली जब हम बनाते हैं तो हमें कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है उसका. सो बेटर लगता है कि सब कुछ ड्यूटीज वगैरह लगाकर भी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर भी हमें वहां से मंगवाना सस्ता पड़ता है, एंड इट इज ऑफ गुड क्वालिटी. उस टाइम में वी गॉट टू नो कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया की जरूरत है. And this is why these kind of slogans like vocal for local and all those things came out, जो आपने न्यूज में पढ़ी होगी, वसुधैव कुटुंबकम and all those things. And तब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, करीब I would say 53 APIs आइडेंटिफाई किए, जिसमें कि हम चाइना पे रिलायंस नहीं करेंगे and we will make it. So as you know कि 5 pillars of Atmanirbhar Bharat was economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. But these all cannot be possible if you will not protect whatever you are creating with the IP. क्योंकि मान लीजिए कोई फॉरेनर है, वो आपकी कंट्री में आया, उसने कुछ चीजें की, बिकॉज हमारे सिटीजन्स भी जब बाहर जाते हैं, दे टेक्स द आइडिया एंड दे इम्प्लीमेंट किया. मान लीजिए वो कोई आए एंड उन्होंने जाकर अपनी कंट्री में कर दिया, एंड द थिंग इज सिंस दे आर डेवलप्ड कमिंग फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस और दे आर हैविंग द अवेयरनेस ऑफ आईपी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर लिया विद आईपी. मान लीजिए आप ही का आइडिया है, वो किसी और ने प्रोटेक्ट करा दिया, तो आपको क्या मिला? आपका तो जो भी क्रिएटिविटी था, टाइम था, दैट वेंट इन द वेन. सो दैट्स व्हाई whatever the thing is, either it's make in India, Atmanirbhar Bharat, or whatever, the important thing is the policies are there. The thing is you need to protect it with the proper IP. And because of this thing, you know that I'll take it first. So the globally competitive Bharat. Why? So that we can improve our global competitiveness by making in India and protecting it with the proper IP. We can increase our exports. We can call for more foreign direct investment. So when the foreign direct investment happens in India and we protect our products or the services also, it not only gives us the employment, but the foreign money also comes inside. So that will increase
and give the competitive edge to our manufacturing capabilities as well as the stable system, which is very important. Made in India, made for the world. So इसमें pharma and IT sector ने globally बहुत participate किया, and the Indian companies, they have a competitive edge in these two sectors. And जब आप compete करते हैं किसी भी foreign market में, तो आपको business की तो अवेयरनेस होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपी लॉ से आप किस तरीके से अपने बिजनेस को, बी इट गुड्स और द सर्विसेज, को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि डेवलप्ड नेशंस को, अगर मैं अपनी डेफिनेशन बताऊं, दैट हाउ आई डिफाइन डेवलप्ड कंट्रीज विद द डेवलपिंग नेशन. डेवलप्ड नेशंस सिंस फ्रॉम देयर स्टार्ट दे हैव इन्वेस्टेड इन द आईपी. उन्होंने आईपी को बहुत सपोर्ट किया. इनफैक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, द क्रिएटर्स, द म्यूजिशियंस, द इंटेलेक्ट पीपल, दे विल बी बेनिफिटेड एंड रिवॉर्डेड, सो प्लीज कम. एंड सिंस यूएस ने इसमें स्टेप लिया था, तो बहुत सारे यूरोपियंस, आपको पता है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की थी, दे वेंट टू यूएस बिकॉज यूएस वाज रिवॉर्डिंग देम. सो इट इज मच मोर एनफोर्स्ड देयर, जो हमारे यहाँ पर अभी भी लैक करते हैं. Reason for lacking is not the law. We already have a law. We already have rules also. Rules के बिना law की कोई वो नहीं होती. So we have law as well as the rules. What we lack is the awareness. We don't know कि अगर मान लीजिए मैंने ये बनाया है with a clay, तो क्या अभी अब मैं अगर आपको ये कहूंगी कि I can build a business over it, तो आप हंसेंगे. But actually I can create a business over it. तो मुझे इसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, and I have to make sure that other people will not do. For example, अगर ये miniature art हमने बनाया है, इसको किस तरीके से करना है. So the thing is, whatever the skills we have, as I told you, पापड़ making is something which is like very, आप बोलेंगे बहुत normal सी चीज है. Same chapati making is also very normal for the Indian women. But you know, I know someone who is building a business, you know, over the chapati only. So among the common, there is an uncommon. But with what? With a proper branding. उन्होंने सबसे पहले रोटी मेकिंग के नाम को ही प्रोटेक्ट करा दिया. And now they are selling. So that I, or like people like me, cannot, infringe or cannot misrepresent that we are also roti making, coming from the roti making. तो वो आपको shield भी है and sword भी है. So the pharma industry, as you know, I would just wrap up with this, that India has defended its title as pharmacy of the world in the crisis by supplying, हमने hydrochloroquine को world over हमने supply किया था, which was a standing thing. And how it happened? It happened because of Make in India, because of Atmanirbhar Bharat. So the same way, when the government is taking the policies, what we guys have to do, we have to take the benefit of those policies, and we only get the edge, the competitive edge, when we not only create, but we protect also. Because जब हम IP में invest करते हैं, that attracts the attention of the financiers, right? That attracts the foreign FDI, जो आप बोलते हैं. FDI ऐसे ही नहीं आता है. They see that, okay, there is some potential, but क्या वो potential really secure भी है? Because आप मुझे बताएं, कल को आप कुछ बनाते हैं और आप बोलते हैं कि we want some investor to invest into it. ऐसा क्यों कोई इन्वेस्टर आएगा जिसे पता चलेगा कि कल को ये कॉपी हो जाएगा और हमारे प्रोडक्ट का कुछ भी एज नहीं रहेगा, मोनोपोली नहीं रहेगी? तो उसके लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टर आपसे हमेशा पूछेंगे, आपने पेटेंट करवाया, कॉपीराइट. मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ जो मुझे अभी जस्ट स्ट्राइक किया है. कुछ टाइम पहले देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड एज शार्क टैंक इंडिया. तो बेसिकली शार्क टैंक यूएस में भी था, बट शार्क टैंक इंडिया हुआ था. मैंने जितने उसके एपिसोड्स देखे, मैंने ये देखा, द पीपल, द शार्क्स, दे ऑलवेज आस्क्ड, आपने इसका पेटेंट करवाया है, आपने इस नाम का ट्रेडमार्क लिया है? बिकॉज दैट्स वेरी अ वेल आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर हम किसी में भी कल को इन्वेस्ट करेंगे, we always see that this business at least give me the profit at least for 10 to 15 years, right? तो तब तक की श्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि आपकी लैंड की प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी या श्योरिटी क्या है, उसके पेपर्स. तो सेम आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का
जो भी एक आई वुड से इनोवेशन है, वो आप किससे प्रोटेक्ट करेंगे? वो आप पेटेंट से प्रोटेक्ट करेंगे, नाम को ट्रेडमार्क से करेंगे। उसको एक अच्छा सा आपने डिजाइन दे दिया तो वो डिजाइन से पेटेंट हो गया, राइट? अगर उससे रिलेटेड कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क है, वो कॉपीराइट से हो गया। बट यू नीड टू क्रिएट, देन ओनली समवन विल इन्वेस्ट ना। किसी भी ऐसे चीज में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जहां उसको पता है कि ये कल को पब्लिक में जाएगा एंड एवरीवन विल मेक इट? That's why pharma industries, that's why I took the example of pharma industry. They make sure that if they invent any molecule or a compound, they protect it with the patent. In case the molecule is already available and it has been expired, they protect the formulation, they protect the indication, or they give it a name. So this is how. So in fact, I will not take this, but the compulsory licensing provisions in the Patent Act, they also have given us a lot of help, right? So what I would say, I'll not take the example of remdesivir and Gilead's patent molecule here because we are running out of the time. The only thing that I will say that in case if the big company like Gilead, right, which has created a molecule remdesivir, and then they have licensed this product to the companies, including in India to Cipla and the Hetero, right? So if they have relied on the Indian companies, then why the educational institutions, why we are not thinking in collaborating with the industries? Why? Because we lack the awareness. So now today we are celebrating the World Intellectual Property Day, not to hear about it, but to aware ourselves. We need to promise ourselves that we will make our educational institution as competitive as per the industry standard, so that like in US, they collaborate, the pharmaceutical company, they collaborate with the educational institutions for any of the research work. Why not we? So we should increase our quality standards. And you know, the first way to increase the quality standards is not to have a very good infrastructure or something. The first way or the first step to improve the quality is to improve the quality of your own mind, your own thought. Whatever you are thinking, you need to implement it. And so I expect that the educational organization like GG Scope, they may in future collaborate with the industry. We may participate in the research if something corona or something like COVID comes again. So we should be well prepared. ये बात सही है कि पहले हम prepared नहीं थे कोरोना जैसे, but एक question हम सबको खुद से पूछना चाहिए. We are studying pharma. Why we are not able to invent any of the molecule? We study so many molecules. Like I'm including myself also because I'm coming from the pharma background only. I did my master's also in that. But even mujhe bhi nahi aaya. Why? That means what we lack. We lack something. So we need to improve our skills. We need to work on our quality. Tabhi Make in India, Atmanirbhar Bharat, and Atmanirbhar se bhi important hai. Self-reliant me, self-reliant youth possible hai, jo ki definitely so the self-reliant youth establish होगा जो कि हमें innovation दे सकता है for better future. Youth doesn't mean I consider a 50-year-old also a youth, a 80-year also a youth, because youth is something, you have the energetic, you have creative mind. So these are just the numbers. Age is just the number. A kid can also create and innovate better. So I would end this session here. Thank you so much. If you have any questions related to it, please ask me. Thank you. नहीं चलेगा तो इसके तार No.
Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. It's always wonderful listening to you. And most importantly, you explain all the aspects of your presentation in very simple words. They are easily understandable, and your examples were just very good. Thank you. Thank you so much if you liked it. So, क्या दे इसको Sir, if you have also joined, then you can also share your ideas about the seminar. Please, sir. Go ahead, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. I think we will collaborate like this. And it's always happy to join you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. Have a great day. Thank you again. Thank you.